request to please wholeheartedly applaud all the dignitaries on the dais. To extend a warm welcome to our esteemed eminent speaker, CA Bimal Jain, I request CA Japan Yagnik, committee member AGFTC, to welcome our eminent speaker with a book. Thank you, sir. I also request CA Mukesh Parekh, committee member AGFTC, to present a memento to our esteemed speaker, CA Bimal Jain. Thank you, sir. It is my privilege to first introduce CA Bimal Jain and then invite him onto the podium to enlighten us further. CA Bimal Jain Sirji is a member of the Institute of Chartered Accountants of India since May 1994 and a member of the Institute of Company Secretaries of India since December 2006. Armed with distinguished titles such as FCA, FCS, LLB, and with an experience spanning across 21 years in indirect taxation, GST, service tax, excise, customs, VAT, CST, FTP, DGFT matters, CA Bimal Jain sir is a chairman of Indirect Tax, Committee of PhD Chamber of Commerce. He had rendered his services to renowned companies like LG Electronics India Private Limited, Honda Motorcycle and Scooters India Private Limited, to name a few. He is presently the executive director of A to Z Tax Corporation LLP, a boutique indirect tax firm. He has been a keynote speaker at Guinness World Record made by ICSI in largest taxation lesson. He has been the recipient of Business Leader Award from Amity School, Noida, Best Speaker Award from NIRC and Young Achievers Award at Igniting Minds. Bimal sir is extraordinary expertise, boasts of exemplary list of clients such as JMC, Coca-Cola, Apollo Tyres, Radisson Blue, Maruti Suzuki, Kent Healthcare Products, LG, Honda, to name a few. Let us all welcome Shri Bimal Jain onto the podium with a huge round of applause. Sir, I welcome you. At the outset, let me thank all the learned managing committee members sitting on dais, without naming each one of you, but my due regards and respect to each one of you, and those who are sitting off the dais. Purushottam Bhai yesterday escorted me from the airport. The other colleague also was there, but if I'm not naming anyone, don't take offensive. Always treat as if I'm your friend and I'm here to give deliberation on GST, and that too on burning issues in GST. So don't fear about GST. I will make GST good and simple tax today. Don't worry about. आपको मजा आने वाला है. ये मैं बिल्कुल आपको मजा लाके दूंगा. आप कल से आपने प्रोग्राम इधर में अटेंड किया. आज मेरा टेक्निकल सेशन है. रेस्ट अस्योर्ड, आपको मजा नहीं आएगा तो पैसा वापस. मजा नहीं आएगा तो पैसा वापस मैं नहीं दूंगा, ऑर्गेनाइजर देंगे. बट कोई इश्यू नहीं, हम एंजॉय करेंगे. वी विल एंजॉय इवन टू द लास्ट रो, दोज हु आर सिटिंग. आज आप मुझे अपना 1 घंटा, 1.5 hours दीजिए. I will give you 15 years of GST practice. 1.5 घंटा दीजिए. Why I'm telling you, lot of you knows me on YouTube. YouTube पे देखा है सर. पहले आपका वीडियो आ जाता है. कभी थोड़ा समझ में आता है, कभी नहीं आता. आज मैं सब कुछ समझा के जाऊंगा, और जब तक आप नहीं बोलेंगे मैं समझ गया तब तक जाऊंगा ही नहीं. तो ये आपको तय करना है कि कब तक मुझको झेलना है. बट हम बड़े एंजॉय के साथ करेंगे.
If I start GST as a way forward, मोदी जी तो इधर से ही हैं, उनने बोल दिया तो होना है। 30 जून की रात को आए, बोला 1 जुलाई से GST implemented. GST got implemented keeping in a mind 4 pillars. Cascading will go away. Multiplicity will go away. Double taxation will not be there. And India would be one nation, one tax. No denial. सर कोई हैं जो मोबाइल पे बात कर रहे हैं? सर मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, 1 घंटा दे दीजिए सर। मैंने इनको बोला है कि इनको मजा नहीं आएगा तो पैसा वापस। तो मैंने अभी तक ऑर्गेनाइजर से बोला था पैसा वापस, अब मैं आपसे बोलूंगा, आपको तो करना पड़ेगा। I will give you the opinion also. I could see some of the young faces. They have come all across Gujarat region, lawyers, chartered accountant combination. I am also CA, CS, and by degree lawyers also, and practicing as a lawyer. So I know the combination of chartered accountant and lawyers, the cocktail and mocktail. रेस्ट अश्योर्ड आपको, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आपका अगर मोमेंटम मेरा ब्रेक नहीं करने का, बस मेरे साथ रहने का है। अभी इमोजीज नहीं भेजना किसी को, अगर किसी का आ भी गया तो बोल देने का 1 घंटा अभी मेरा बेस्ट फ्रेंड आया हुआ है उसको भेजा है मैंने, ठीक है ना सर? मजा तब आता है जब दोनों तरफ से बात हो। अब आप राहुल बाबा, सॉरी अभी इधर में भी पॉलिटिक्स चालू होगी तो मुश्किल हो जाएगी। See, I deliver, but if you don't get it, then I'm not successful. I'm successful only when I deliver and you get it, you receive it. And this goes both way. Tali dono haath se basti hai, right? I will make it today. Do you think India GST is a one nation, one tax? What did you say, yes or no? No. मोदी जी ने आपकी बात सुनी नहीं है? सुन लेंगे ना तो बस। Genuinely saying, GST we thought would be good and simple tax. But the problem for GST not successful, region number 1H, GST common portal. They could not build infrastructure which was required for the GST introduction. And we are failing. I will prove today and will also discuss the law provision. I was talking to one of my friend in the morning. सर जीएसटी अभी बहुत डायनेमिक है। मैंने कहा इतना डायनेमिक है पूछो मत, जो सुबह पढ़ा वो शाम का गारंटी नहीं है, और जो शाम का पढ़ा उसका सुबह का। तो कई लोग तो स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे, कब स्टार्ट करें? There are lot many guys, they are looking into GST, स्टार्ट करना है, पर कब स्टार्ट करें? उनको लगता है कि अभी पढ़ा तो कल खत्म। सर दिस इज द राइट टाइम। अगर आप जीएसटी नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए, और बिना जीएसटी के आप इनकम टैक्स भी नहीं कर सकते। अब तो वो नोटिस भेज रहे हैं 26 years वर्सेस सर्विस टैक्स टर्नओवर पैन इंडिया। सर्विस टैक्स लगेगा नहीं मालूम, बट नोटिस आ रहा है मेरे पास। सर दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग। प्रैक्टिस इज नॉट इन रिटर्न फाइलिंग। रिटर्न फाइलिंग जो करता है ना वो लोकल ट्रेन, पैसा नहीं मिलेगा, वो क्लाइंट आपको 2000 रुपया देगा, दिन भर आपका दिमाग खा जाएगा, और इतना वॉल्यूम वाला डेटा कुछ नहीं मिलने का। और आने वाले टाइम में इट इज गेटिंग ऑटोमेटेड। प्रैक्टिस विल नॉट बी देयर इन रिटर्न फाइलिंग, इट वुड बी देयर इन एडवाइजरी एंड लिटिगेशन ओनली। सो यू हैव टू रियली स्टार्ट एंड रीथिंक where from you should start your GST practice. Let's start with the burning issues and try to reconcile. आज आप भी सोचिए कि आपको जीएसटी कितना आता है, और मैं भी सोचता हूं कि जीएसटी में कितना बता के जा पाया आपको। हम दोनों मिलके करेंगे। I will take Union Budget 2021 into consideration for my discussion today, which is the recent happening issue. Though organizer wanted me to deliver lot many topics. उन्होंने बोला 1.5 घंटे में आप इस सेक्टर को भी देख लो, इस सेक्टर को भी देख लो, इस सेक्टर, मतलब कोई सेक्टर समझ में नहीं आएगा फिर।
जितना समझ में आएगा उतना मुझे डिलीवर करने दीजिए. Let's start with the first one. As a taxpayer, as a supplier, I'm filing my GSTR1, which is my outward supply. अगर किसी को कुछ नहीं मालूम हो ना, वो बोल देगा बिमल जी मुझे कुछ नहीं मालूम, थोड़ा बेसिक होके समझाइए. पूरा बेसिक होके समझाऊंगा. तो हम अपना GSTR1 भरते हैं. मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का भरा. Tax liability shown as 1 lakh rupees. When I'm supposed to file my GSTR3B, which is on 28th or 22nd or 24th, depending on the state and turnover, मुझे लगा मेरे से गलती हो गई. GSTR1 में मुझे 50,000 रुपीज का डालने का था, पर मैंने भर दिया कितने रुपए से? 1 लाख रुपए से. As a taxpayer, I will pay only 50,000 because that is my correct number. Am I right? So there is mismatch. 1 lakh rupees in GSTR1 versus 50,000 in GSTR3B. How many of you think problem है? एक बार हाथ उठाइए, आपको लगता है प्रॉब्लम है? अभी नहीं है. आगे आएगा. ओहो, ये बोलते अभी नहीं है, आगे आएगा. कुछ लोगों ने हाथ उठाया, कुछ ने बोला अभी नहीं है, कुछ तो बोलता है मैं हाथ उठाऊंगा ही नहीं, जब आएगा तब देखा जाएगा. जब आएगा तब देखा जाएगा. सर, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम नाउ. गवर्नमेंट वांट इट. गवर्नमेंट क्या सोचती है मालूम है? हम लोग रोबोट है, रोबोट. उनका सिस्टम चलेगा नहीं, हमको रोबोट बनना है. What they are saying, Bimal ji, this 50,000 difference of GSTR1 versus GSTR3B would be considered as a self-assessment tax. Dadagiri. And that would be recovered without issuance of so-called notice. आपका और मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज, and they will recover this money. Is it possible? I was sitting with CBIC chairperson few days back, member GST. Mr. M. Ajit Kumar is the chairperson. Mr. Bibek Jori is member GST. I was telling him, sir, क्या कर रहे हैं आप लोग? You are not bringing the law which should make GST good and simple tax. He asked me, Bimal ji, क्या problem? मैंने बोला, सर, इस बंदे ने गलती से 1 लाख रुपया भर दिया. एंड यू नो, रिटर्न जब हम भरते हैं तो वो दिन में तो जाता ही नहीं है, जाता ही रात को है. ये तो गनीमत है कि वो 1 लाख भरा, अभी एक और जीरो आगे बढ़ा देता तो 10 लाख रुपया, एक और जीरो आगे बढ़ा देता तो 1 करोड़ रुपया. यू मीन टू से सेल्फ असेसमेंट टैक्स? आर यू गेटिंग माई मैसेज? मैंने बोला, सर प्लीज बी प्रैक्टिकल. आई नो आई मेड मिस्टेक, बट यू हैव नॉट गिवन मी रिवीजन ऑप्शन. जब मैं GSTR3B भर रहा था, मुझे मालूम पड़ा मैंने GSTR1 में गलती कर दी, आप मुझे रिवीजन ऑप्शन दे देते. कब से मांग रहा हूं, अभी तक नहीं दिया, तो मैं ठीक कर लेता. और कम से कम सेल्फ असेसमेंट टैक्स आप तब तक मानिए ना जब तक कुछ लॉजिकल हो. बोले बिमल जी आप सजेशन दीजिए, आपका क्या सजेशन है? पहले क्वेश्चन दे दिया, आप तो हाथ भी नहीं उठाना चाह रहे. जब मैंने पूछा तो आप में से कई लोग हाथ भी नहीं उठा रहे. बोले काहे को उठाए, जब नोटिस आएगा तब देखेंगे. मेरे को अभी उनको आंसर देने का है. मैंने बोला, सर क्या गलती की आपने मालूम है? You could have made it T+2 month. T+2 month. The tax period plus 2 month. Since you have not given me revision option, I can correct this transaction in subsequent month. Am I right? Do you all agree? आपकी वॉइस में मजा आना चाहिए. खाना अच्छा बना है बाहर में आज. हम सब लंच अच्छा करेंगे, विश्वास मानिए लंच अच्छा होगा. बट आपकी आवाज में लगना चाहिए कि हां आज का सेशन सबसे बेस्ट सेशन था, ऐसा लगना चाहिए. तो बिना सबका साथ बीजेपी का विकास नहीं हो सकता.
बीजेपी का विकास नहीं हो सकता। तो आपको मेरा साथ नहीं दोगे क्या? देना पड़ेगा। I'm in Gujarat, so I'm in your tone, so don't take me otherwise. I said T plus 2 month. I could have corrected in subsequent month. आपने नहीं दिया। फिर मैंने उनको बताया सर यही नहीं है, आपने और भी नाटक कर रखा है। ऐसे नहीं बोला, बोलने का तरीका अलग था। मैंने बोला और भी नाटक कर रखा है। बोले क्या नाटक कर रखा है? बोला नाटक नंबर 1, सर अगर GSTR 1 और 3B में डिफरेंस हुआ ना, then rule 21 in CGST rule 2017 recently got notified on 22nd December 2020. वो बोलते हैं if there's a difference, department can initiate cancellation of GST number. सर इसका गलती नहीं, बेचारा वैसे तो रिटर्न रात को जाता, ये तो गनीमत है 1 लाख गया, अगर वो 1 जीरो भर जाता तो आप क्या कहते हैं इसका GSTN कैंसिल? बोले नहीं नहीं बिमल जी ऐसा होता नहीं है। वैसे ग्राउंड लेवल पे जाइए वो लोग क्या कर रहे हैं। यू गो एट ग्राउंड लेवल एंड सी व्हाट दे आर डूइंग। डोंट मेक लॉ विच इज क्रिएटिंग हैवॉक एंड ग्राउंड लेवल ऑफिसर्स आर ओनली क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर द टैक्स पेयर। इट इज गोइंग नेगेटिव। एक किसी बंदे से मेरी बातचीत हो रही थी, बोले यार हमारे मोदी जी और ये सब चाहते हैं GST गुड एंड सिंपल टैक्स हो जाए। मैंने बोला सर मुझे मौका दिलवा दो, 10 मिनट बात करने की है, हिंदी में बात करूंगा प्योर, बोल दूंगा GST कौन गुड एंड सिंपल नहीं होने दे रहा। एंड यू ऑल नो एंड आई ऑल्सो नो देयर इंटेंशन इज वेरी क्लियर, बट एट ग्राउंड लेवल थिंग्स आर नॉट कमिंग डाउन। The first problem of Union Budget 2021, they say difference of GSTR 1 and 3B will create problem. Then again he was very vocal about that officer telling me, बिमल जी और कोई problem आपको कहीं पे नजर आया? मैंने सर बोलना स्टार्ट करूंगा तो you will say that I'm critics. But let me tell you what are the problem now, what government looking into, what is the government vision now. गवर्नमेंट का विजन क्या है मालूम है? अब वो बोलते हैं आपका GSTR 1 जो भरेंगे ना उसका लाइबिलिटी ऑटो पॉपुलेट होके GSTR 3B में चला जाएगा। आप कुछ नहीं करेंगे, whatever you fill up in GSTR 1 will get auto populated as a liability in GSTR 3B, और जो आपका सप्लायर 1 भरेगा ना वो 2A 2B अभी तक तो समझ में नहीं आया 2A फॉलो करें या 2B फॉलो करें, अभी तक तो यही समझ में नहीं आ रहा। वो डुप्लीकेट जुड़वा बच्चा समझ में नहीं आता 2A देखें या 2B देखें, उधर से ऑटो पॉपुलेट होके 3B में। तो मैंने बोली फिर मैं क्या करूंगा? बोले आपको कुछ नहीं करना, नथिंग, सिर्फ टैक्स भरना है आपको। मैंने ये तो सबसे बेस्ट आपने सोचा। फिर मैंने सेकंड प्रॉब्लम उनको सुझाया। मैंने सर एक सप्लायर है चोर, 1 भर दिया 3B नहीं भरा, 1 भी नहीं भरा 3B भी नहीं भरा, दोनों कैटेगरी हो सकता है ना। 1 भरा तो 2A में आ गया, और एक बंदा है 1 भी नहीं भरा और 3B भी नहीं भरा। आप बोलते बिमल तुमको क्रेडिट नहीं मिलेगा। अरे सर रजिस्ट्रेशन आपने दिया ना उसको, उसके पास जाओ उसको पकड़ो। नहीं नहीं तुमको पकड़ेंगे। मैं तुमको, मुझको क्यों सर? बोले तुम देखने में ज्यादा अच्छे लगते हो। सर अगर GST यही है, बिलीव मी दैट विल क्रिएट chaos in the country, and it is creating, sorry to say that, it is creating chaos in the country, and we are not clear about क्या करने का है, क्या देखने का है। पहला केस स्टडी मैंने आपके, पर मैं आपको यहां आंसर देके जा रहा हूं। सब यूनियन बजट पे बोल के गए होंगे आपसे सेल्फ असेसमेंट टैक्स होगा, ये होगा। आई गिवन सजेशन ऑफ T plus 2 months, and I am sure this house will say yes, this was a good suggestion. Am I right in saying so? Yes. So first case study. Come to the second case study. I do practical, that's the reason I'm doing practical case study. Second one is, सर हम लोग इधर में GST कंसल्टेंट का काम करते हैं, मे बी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट और मे बी एज ए लॉयर। फीस तो आपको और हमको सबको मालूम है,
क्लाइंट का अगर कोई प्रॉब्लम है तो फीस मांगिए दे देगा, और प्रॉब्लम नहीं है ना तो बिमल जी रिटर्न ही तो भर रहे हैं आप, क्या काम है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। और चार्टर्ड अकाउंटेंट बेचारा तो इस साल का फीस नेक्स्ट ईयर आता है, वो भी दया होने पे, और डीमोनेटाइजेशन हो गया तो पहले आ जाएगा, बोले पुराना नोट पड़ा है ले जाओ। Am I right? सबने देखा है ना, क्लाइंट ने बुला बुला के दिया था, आपका फीस रह गया था, बिमल जी लेके जाइए। अब देखिए एक चीज जो मैं इंपॉर्टेंटली आई एम आस्किंग यू, ए कंपनी हैविंग लाइबिलिटी ऑफ 10 लाख रुपीज कंपनी, and you are consultant for that company. My second question goes to all of you, whether department can provisionally attach your property, your bank account, possible? Yes or no? How many of you say yes, by the way? I'm not looking for the no. I'm looking for who is saying yes. After new changes, it may be. सर अगर नया चेंज है तो मे भी तो होगा ही नहीं, फिर तो वो मोदी जी हैं, फिर तो होगा ही होगा। Section 83 subsection 1, they are going to substitute, and as per substituted provision, yes, they can provisionally attach property and bank account of taxable person, जो कंपनी है, पर अटैचमेंट में भी बहुत सारा रिट पिटीशन है, एडजुडिकेशन नहीं हुआ, फिर भी यू आर गोइंग एंड अटैचिंग द प्रॉपर्टी। आपने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं, गुजरात हाई कोर्ट एट द मोमेंट इन द लाइमलाइट, इतना सारा जजमेंट गुजरात हाई कोर्ट से भी आ रहा है, नन ऑफ द हाई कोर्ट इज गिविंग जजमेंट। I will say 60-70% good judgment, favorable judgment in favor of taxpayer. I see from Gujarat High Court. So what they are doing, provisional attachment even without following natural justice. They are attaching our property. Taxable person, company का आप attach कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बिमल जैन जीएसटी कंसल्टेंट बेचारे को 10,000 रुपया मिलता है, आप उसका प्रॉपर्टी अटैच कर लोगे? Now they are going to attach it. Be careful. कब अटैच करेगा वो रीजन बता देता हूं मैं आपको, कब अटैच करेगा। Section 122 subsection 1A of CGST Act. There are 4 specified offenses. If you are the person, if I am the person and I am causing to commit, means I am helping the taxable person to commit. So what are those 4 offenses? First, supply of goods or services without issuance of invoice. Cash sale. Do you all agree? Cash sale. Invoice issue nahi hua. Only supply of goods or services. If that taxable person is engaged in cash sale and you're only GST consultant, आपका कोई रोल नहीं है, but causes to commit, you know ना, डिपार्टमेंट को मालूम है कैसे प्रूव करने का। Causes to commit. First. Second, issuing invoice but without supply of goods or services. What is called this is? Fake invoice. Fake invoice, fake credit. Second. Third, if input tax credit wrongly availed or utilized, not only availed and utilized, it is availed or without actual receipt of goods or services. And last one, input service distributor credit wrongly distributed and availed in contravention of section 20 of CGST Act. So what is the provision now changing, sir? Provision changing and saying, Bimal, your property and bank account can also be attached. No, it is not maybe. If provision gets, this finance bill get passed, becomes the law, then they can attach even my property and bank account. If you are
coming out that you are causing to commit and retaining the benefit. पहले तो आपका प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट अटैच करेंगे, दूसरा मालूम है आपके ऊपर पेनाल्टी भी लगने वाला है, पेनाल्टी इक्विवेलेंट ऑफ टैक्स इवेडेड और ITC wrongly availed or utilized. So what is the answer I am giving to all of you? सर इधर पेनाल्टी भी दीजिए और इधर आपकी प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट भी अटैच होने वाला है. What is my role? I am only getting 10,000 rupees. Please tell me, I am not understanding these provisions. These are extended power in the hands of government official. So what should be your suggestion? Please tell me. आपका सजेशन क्या होगा? एक या दो लोग कोई बताइए, मुझे बताना है. वो CBIC चेयरपर्सन के साथ जब बैठा था तो मैंने भी कुछ बोला होगा, मैं बताऊंगा मैंने क्या बोला. आपका सजेशन क्या होगा? ये प्रोविजन नहीं होना चाहिए, यही होगा ना? ओके. सर मैं बताऊं आपको, मान लीजिए कंपनी के आप ऑडिटर हैं. He asked me, I'm into profession, where is my role that I'm causing to commit? This was your query. You are finding lot of information coming out in the market and public domain that this chartered accountant, this lawyer got caught. And I'm certifying the balance sheet and trial balance also of the company. That's the reason I said that without GST you can't do income tax and audit, etc. You have to have knowledge of GST. Now what happened if company got caught? Let's say in these offenses which I cited just a while ago, and you happen to be a consultant signing the report. What they will say, Bimalji, are you not supposed to check? And you will say, no, I got my own limitation. I will see certain test data and certify the report. Then you continue to justify your position. आप justify करते रह जाएंगे. सर वो तो ये बोलेगा कि आपने भी इनकी हेल्प की है. डिपार्टमेंट करता है क्या? ऐसा जब सर्च एंड सीजर होते हैं ना तो कुछ नहीं करता सर. वो आके सबसे पहले एलिगेशन लगाते हैं. उनका काम है एलिगेशन लगाना. रीजन टू बिलीव उनको मालूम है, मुझे नहीं मालूम. रीजन टू बिलीव दे नो बट आई डोंट नो. What you should do, what I suggested first. I said, sir, these are the provisions should come. You can attach my property and bank account only after adjudication is being done, that I'm causing to commit. Not on the apprehension without issuance of so cause notice first. But आपको और हमको अब क्या करना चाहिए मालूम है? Suggestion free of cost. If you happen to be GST consultant, director, company secretary, and you're only doing the delegated role which is given by the company, as a consultant, you take the report and get it signed by the company at the end of the period, saying that this is the data which I provided, it is true and fair in compliance of GST law. And we are not into any such activity which is specified offenses, 21 offenses. Under section 122, let them indemnify our position. कल उनकी वजह से मैं नहीं फंसूंगा ना, मुझे तो 10,000 रुपए मिल रहे हैं ना. Take this certificate as a month-end activity or quarterly activity. Please make sure you are making your position wiser. क्या आपको ये वाली बात समझ में आई सर? Second point, have you understood it? Yes. Am I clear to all? But this is what the burning issue now. Item number 2. But suggestion gets signed. आप बोलेंगे सर क्लाइंट देता नहीं है. मेरी एक सुबह बातचीत हो रही थी पुरुषोत्तम भाई से. मैंने बोला इधर अहमदाबाद का कंसल सर क्लाइंट कैसा है, पैसा देता है एडवांस में? बोले एडवांस में? ही सेड लाइक दैट, एडवांस में कुछ है क्या, इशू है क्या इसमें? आप लोग भी हंसने लगे. मतलब हंसने का मतलब यह कि वो एडवांस में नहीं देगा. मैंने बोला सर GST practice now need to be changed. What I do normally, I charge 50% advance. बोले 50% एडवांस आपको दे देता है? बोले सर मैं बोलता ही उससे हूं कि तेरी फाइल तभी पढ़ूंगा जब एडवांस आएगा, मेरे पास टाइम नहीं है. तेरी फाइल पढ़ूं, तुझको टाइम दूं,
पहले 50% एडवांस रख के जा। फिर क्या करते हैं बिमल जी आप? मैंने कहा फिर 25% चार्ज करता हूं टोटल फीस का, कि ये सो कॉज नोटिस का रिप्लाई चला गया, अब तू 25% दे के जा। और भैया आप लोग आवाज कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, यू आर साउंडिंग ए लॉट। कैन आई रिक्वेस्ट यू टू स्टॉप? एंड लास्ट 25% ऑन कंक्लूजन। सो मेरा ओनली रिस्क 25% का है। सर आई एम टेलिंग यू नाउ वी हैव टू स्टार्ट सेइंग नो टू आवर क्लाइंट। नहीं करूंगा। What we are normally doing, sir, Purushottam bhai sitting in front of me, you are learned, so many seniors are learned. एक chartered accountant, एक lawyer, can you do all mastery in income tax, FEMA, GST, company law, SEBI law, these provision, can you do mastery? Not possible. And what is the fees I am getting? Problem भी क्या है मालूम है? अगर client ने मुझको phone किया ना कि बिमल जी इसका क्या होगा, नहीं आता, फिर भी आंसर देंगे, कहीं बगल वाले के पास ना चला जाए। सर कब तक? इट हैज गॉट प्राइस। इवन गो टू ए हॉस्पिटल, दांत वाला डॉक्टर कान नहीं देखना मांगता, कान वाला आंख देखना नहीं मांगता। और थोड़ा सा इधर दर्द हुआ ना, इधर दर्द हुआ, बोले पूरे बॉडी का स्कैन करवा दो। और हम सब सारा स्कैन, और उधर में हम सब करते हैं, बट हमारे प्रोफेशन में वी आर नॉट विलिंग टू से नो। सर provisional attachment along with penalty, be careful now. Be careful now. It is an eye-opener what government started thinking. Coming to the third case study, important and interesting one. इसमें आप सबको मजा आएगा और सबको अच्छा लगेगा। Yes sir. ये cases अभी आपने बोले, हाँ, इसमें after the issue, if someone is taking his file, then his position After provisional attachment. after the crime is created, after the events, if someone is taking file, Someone is taking someone other lawyer is taking. file. See, there was always a litigation practice, no objection certificate. There was prevalent practice, but अभी तो problem क्या है मालूम है? Cutting the fees, cutting the age. आप एक बिल्डिंग में जाइए, थर्ड फ्लोर पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 10,000 रुपीज ITR भरने का लेता है। सेकंड वाले को मालूम पड़ गया ना क्लाइंट है, वो बोलेगा इधर आओ, किस लिए आए थे? बॉस ITR भरने के लिए आया था। वो ऊपर इतना जाते आते रहते हो, क्यों परेशान होते हो? 5,000 रुपए में मैं करूंगा तेरा काम। फर्स्ट फ्लोर वाला, यार किस लिए आए थे? ITR भरने। इतना परेशान होते हो, 2,000 रुपया। ग्राउंड फ्लोर पे वो नया नया चार्टर्ड अकाउंटेंट कल ही पास हुआ, ऑफिस नहीं है, टेबल चेयर, मोमबत्ती धूपबत्ती लगा के बैठा हुआ। वो क्या बोलेगा मालूम है? सर क्या परेशान होते हो, इस साल फ्री, अगले साल से फीस। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। वी आर कटिंग आवर ओन हैंड्स एंड लेग्स। दैट इज द रीजन। आंसर टू योर पॉइंट, सर वी हैव टू रेस्पेक्ट आवर ओन स्टैंडर्ड। मैं आता हूं सर, उस पर भी आता हूं, उधर में भी आता हूं। उधर में पहले लॉ वाइज तो आगे बढ़ूं। अब अगर मेरा अटैचमेंट हुआ, आई गॉट माई प्रिविलेज of handling the litigation, whether my property can be attached even without issuance of so cause notice, or even after issuance of so cause notice, or before adjudication or after adjudication. And tell me 1% case कौन adjudication के बाद जीतता है? सारा against us, against taxpayer. Am I right? I will go with the writ petition and prove my case. Now if file has gone to some other consultant, that we have to manage, that other consultant who is now looking after why my property is going to be attached. I hope I'm being able to, was it your query which you wanted or something different? दूसरे कंसल्टेंट ने फाइल ली, तो उसकी प्रॉपर्टी के अटैच हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? After the event, I will come back. after the event is occurred, someone is going with the other person. Whether his property is secure. Now he is only raising a point saying that if file has moved to other consultant, whether his property can be attached,
Only it can be attached in the case it is being proven he also got engaged in 4 specified offenses. Answer to him, other consultant का तभी attach होगा ना जब उसको involvement होगा, otherwise नहीं. Am I clear, sir? Third case study, you will like this most. And I'm sure आप सबका आंसर सही आएगा. सर मेरी 1 लाख नहीं 1 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है. 1 लाख करके फायदा क्या, थोड़ा बड़ा फिगर बोलने का. गुजरात है, वो छोटा छोटा फिगर में काम ही नहीं होगा. 1 करोड़ रुपया की लायबिलिटी, राइट? MOC is also listening to me carefully. Do you do GST? You don't do GST. Is GST applicable now? She does not do GST but listening me so carefully. Whether GST applicable? बोलिए ना हाँ या ना. लगेगा या नहीं लगेगा? I'm serious. लगेगा? He is from department or what? See, I can prove today नहीं लगेगा और लगेगा. See, I never come prepared कि मेरे को ये सब बोलने का है, but this is the way I really teach us GST. No GST because he is not related person. And I'm not charging any consideration. For charging GST, there has to be consideration, monetary or non-monetary. Am I right? Am I right? But अगर इधर में मेरी वाइफ बैठी होती, and she is also listening GST, but otherwise she is not into GST practice. She is a fashion designer. अगर वो सुन रही होती तो GST लगता. Schedule 1, supply of goods or services between related person, even without consideration. See? So simple GST law. अब इधर में भी टैक्स लगा के बताता हूं. देखिए मैम, कैन यू ओपन योर मास्क? I don't like to know, don't take personal. Huh? इतना सुनने के बाद she is giving me a smile. Is it not consideration? No, I'm also giving good smile and look at each other. Non-monetary consideration. See, out of natural love or affection. See, इतना लाइन तो मैंने सोचा ही नहीं. मैं सोचा ही नहीं इतना भी होता है क्या. अब आप सोचिए, इधर स्माइल नॉन मॉनिटरी हो गया ना, फिर होगा वैल्यूएशन. इसका वैल्यूएशन कितना होगा? Am I right? GST law is so good in simple tax. This was the issue under supply. The term supply, the way it is being defined. 100 years of practice, only term supply. So that was not my topic. I was on some different topic. But in between, I thought that she is listening so carefully. लगता है GST जानती होगी. मुझे क्या मालूम था? But nevertheless, ma'am, on a lighter note, coming to the third case study. 1 करोड़ रुपए के मेरा liability है. 1 crore rupees is my liability. And I got 80 lakh rupees lying in my e-credit ledger. 20 लाख रुपया मेरे को जमा करने का है. फाइनेंशियल क्रंच, सर नहीं है पैसा मेरे पास. आई एम सबमिटिंग माई रिटर्न ओनली आफ्टर 6 months. दैट टू आई एम पेइंग दिस 20 लाख फ्रॉम माई ओन पॉकेट. अभी भी क्लाइंट ने नहीं दिया. मेरे पास 2 क्वेश्चन हैं. इंटरेस्ट लगेगा, यस और नो, on 20 lakh rupees or 1 crore rupees? Second question. अच्छा, एक बार वोटिंग करते हैं, वोटिंग ईमानदारी से. और इसमें कोई आप सपा ये सब नहीं होना चाहिए, या बीजेपी या कांग्रेस. हाउ मेनी ऑफ यू से इंटरेस्ट एप्लीकेबल ऑन 1 crore? रेज योर हैंड्स ऑन 1 crore. And how many of you believe interest applicable on 20 lakh?
एवरीवन, राइट? सर थे वहां पे, एक लर्नेड मेंबर है, मैंने बोला एक ही हाथ उठाना, उन्होंने 2 हाथ उठाए 20 लाख के ऊपर, 20 लाख के ऊपर। सर, हमने कभी किसी लॉ में प्रोविजन नहीं देखा था कि जीएस इंटरेस्ट क्रॉस टैक्स पे लगता है। There are so many lawyers, learned senior members sitting. We have seen the law in VAT also, in excise also. It was applicable only on net tax liability. Am I right? On outstanding. 26AS. TDS काटने के बाद ही तो टैक्स लगेगा, उस पर इंटरेस्ट की बात करेंगे 234A, 234B, 234C, कि तुम ग्रॉस पे ले लोगे। पहला प्रॉब्लम के बीच में एक छोटा सा प्रॉब्लम और पहुंच करता हूं। मैंने बोला सर, and this question I was raising before one of the minister. I'm not naming him for a different region. मैंने मिनिस्टर से बोला, आप सर बोलते हैं एसएमई एमएसएमई को हेल्प करने का है, एसएमई एमएसएमई को हेल्प करने का है। मैंने सर, मैं अभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास किया, 10 लाख रुपए का इनवॉइस रेज किया, 18% जीएसटी चार्ज किया, क्लाइंट ने मेरे को नहीं दिया। आप बोलते हैं बिमल तेरे को जमा कराना पड़ेगा। जीएसटी इज ऑन एक्रूअल बेसिस। एम आई राइट? सर थोड़ा सा मेरे साथ बोलो सर, मेरे साथ थोड़ा सा। आई नो दैट बहुत सारे काम है, अब थोड़ा मेरे साथ एंजॉय कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा मेरे साथ, राइट? देखिए, मोबाइल है ही ऐसा, जब तक 3 बार उठा ना ले तब तक लगता है कि धड़कन चल रही है, नहीं चल रही है। वो धड़कन की चिंता नहीं है, मोबाइल पे कुछ आना चाहिए। कुछ आया क्या? आदत हमारी मेरी भी बुरी हो गई है। कई बार तो क्लाइंट मीटिंग में जब बैठता हूं ना, तो मोबाइल बाहर दे देता हूं, बोले भाई ये बाहर रखो, अंदर नहीं रखने का। पूछे क्यों? वो हमारी आदत इतनी गंदी है कि 10 बार हाथ उधर जाएगा। सर, वी हैव टू स्टॉप दिस प्रैक्टिस फॉर बेटर प्रोफेशनल सर्विसेज। कई बार पढ़ाई करते वक्त ना, वी गेट डाइवर्टेड। सी, आई एम टेलिंग एवरीथिंग फ्रॉम माई CPU। कोई PPT नहीं ना, कोई लॉ नहीं ना, कोई प्रोविजन नहीं ना, किधर से आया? कहीं तो स्टोर किया ना। इट कम्स विद द एक्सीलेंसी ऑफ डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। सर करना पड़ेगा। अब आप मेरे सामने बैठ के मोबाइल देखते रहिए, मुझे लगेगा या तो मैं प्रॉपर नहीं बोल पा रहा या आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर भी जीएसटी लग जाएगा। चलिए पॉइंट पे आते हैं। मैंने बोला सर इसने तो अभी रिसीव ही नहीं किया, और आप कहते हैं जीएसटी जमा करना पड़ेगा। आप अगर ये जीएसटी जमा नहीं करेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% पर एनम। मैंने, आप क्या कर रहे हैं सर? ये बैंक जाएगा, वर्किंग कैपिटल लोन लेगा, 12% की ब्याज पे लेगा, और आपका जीएसटी जमा कराएगा 6% बचाने के लिए। Am I right? Is it SME MSME सपोर्ट? नो वे। मिला नहीं इसको पैसा। और बिमल तेरे लिए प्रोविजन बनाया ना, 6 महीने में पैसा दे देगा, ये 6 महीने में तुझको पैसा दे देगा, वरना जो क्रेडिट लिया है रिवर्स मारना पड़ेगा। एक है ना प्रोविजन। मैंने, सर जिसको नहीं देना है ना, वो अगले साल तक देगा, और 6 महीने आप मुझसे तो भरवा रहे हो ना, ये मैं कहां से लेके आऊं? Where from I get the money? SME MSME सर्विस टैक्स में रिजीम था 50 लाख रुपीज। जो सर्विस टैक्स करते थे उनको मालूम होगा 50 लाख की लिमिट होती थी ऑन रिसीट बेसिस। जीएसटी में ऑल गॉन। जीएसटी में क्या पिक किया गया मालूम है? जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको बोलो गुड एंड सिंपल। अच्छा, तो आपने प्रोविजन लिया ही नहीं। प्रोविजन कौन सा लिया? डराओ, पहला पार्ट। और दूसरा पार्ट, इंटरेस्ट आप किस पे लोगे? ग्रॉस 1 करोड़ पे या नेट 20 लाख पे? पहले प्रोविजन बना दिया लॉ के अंदर कि ग्रॉस पे लगेगा। तो सबसे पहले मुझे पूछना है, जिसने लॉ बनाया वो कौन सा महानतम आत्मा था जिसने ग्रॉस पे डाला? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, दिस मैटर वाज रेज्ड इन जीएसटी काउंसिल 31st जीएसटी काउंसिल मीटिंग ऑन 23rd December 2018। जीएसटी काउंसिल के पास मैं गया, मैंने बोला सर आप लोगों ने ऐसा लॉ अच्छा बिमल, ऐसा है लॉ के अंदर 1 करोड़ रुपए मांगता है? गलत है यार, ये 20 लाख पे होना चाहिए जैसा आप लोगों ने कहा। बोला ठीक है इसको ठीक कर देंगे, हम लोग ठीक कर देंगे। एक प्रोविजन ने ऐड किया एक्ट के अंदर।
अंडर सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 में प्रोविजन डाल दिया, और प्रोविजन में डालने का बोला अब नेट पे लगेगा, और उस प्रोविजन को इंप्लीमेंट ही नहीं किया। इंप्लीमेंट किया 1 सितंबर 2020 को, और जब इंप्लीमेंट किया तब भी प्रोस्पेक्टिव, नॉट रिट्रोस्पेक्टिव। एम आई राइट? फिर मैं 39 जीएसटी काउंसिल में गया, मैंने बोला सर उधर 31 में मैं आपसे बोल के गया था। अच्छा तुम बोल के गए थे? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है करो भाई, ठीक करो, और रिट्रोस्पेक्टिव डेट से करो। सर जीएसटी काउंसिल का कोई इंपॉर्टेंस है या नहीं है? इफ दे से दैट नीड टू बी एक्टेड ऑन, राइट? एक ही बॉडी है जिसको मैं देख रहा हूं एज ए पावरफुल बॉडी, दैट पावरफुल बॉडी सेइंग समथिंग एंड नॉट गेटिंग इंप्लीमेंटेड, वेयर वी आर हेडिंग फॉर? सर मुझे समझ में नहीं आता। आदिया साहब हमारे रेवेन्यू सेक्रेटरी रहे गुजरात, फिर उधर में इंडिया में रहे, जीएसटी काउंसिल के सेक्रेटरी रहे। आई एम ओनली क्वेश्चनिंग इफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट वर्किंग। जीएसटी कॉमन पोर्टल को तो आप बोल सकते हो कि भैया वो सिस्टम है नहीं चल रहा, इधर आदमी है इसका दिमाग चल रहा है, इसको तो अप्लाई करो, ऑर्डिनेंस ले आओ। इफ पार्लियामेंट इज नॉट सेशन, लॉ वी नो अबाउट इट, गेट इट इंप्लीमेंटेड। इस बार एक अच्छा चेंज किया बजट में, सबसे अच्छा चेंज बजट में। अब इंटरेस्ट कितने पे लगेगा? 20 लाख पे लगेगा, और दैट टू रिट्रोस्पेक्टिवली। सबसे बड़ा बात इन्होंने क्या बोला? रिट्रोस्पेक्टिवली। अब इसमें 2 क्वेश्चन मैं आपको हेल्प करके देके जाता हूं जो कहीं नहीं सुना होगा आपने। अगर आपने गलती से ग्रॉस के ऊपर इंटरेस्ट दे दिया तो क्या करेंगे? क्या लेंगे सर? गया ना? कोई रिफंड वाला है क्या? कोई रिफंड वाला इधर में? आप रिफंड लेने जाएंगे, राइट? आके मिलिएगा डिपार्टमेंट में। सर प्रॉब्लम इज दैट फर्स्ट यू मेक ए लॉ एंड देन इशू ए नोटिस। कितना नोटिस पूरा पैन इंडिया में इशू किया, एंड एक मेमो इशू किया था कोई सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, बोला 50,000 करोड़ का कलेक्शन होने वाला है। अरे इंटरेस्ट और लेट फीस से ही कलेक्शन करोगे क्या? अभी मेरा टैक्स उतना नहीं है, नील है, लेट फीस मेरा 10 लाख रुपया। किधर में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? इफ यू हैव पेड इंटरेस्ट ऑन ग्रॉस टैक्स, टेक माई वर्ड, वंस दिस फाइनेंस बिल गेट इनेक्टेड, you file your refund claim, you're entitled to, first part. और अगर आपके पास कोई नोटिस अगर आया है, reply them back, I will not pay on gross tax, I will pay on net tax. Do whatever you want to do. Second and third, एक लॉबी है ना जो हाथ नहीं उठाती, जिसको कोई मतलब नहीं कुछ नहीं करने का, जब आएगा तब देखेंगे, उनके लिए आंसर, सर जीएसटी में ऐसा नहीं होगा। जीएसटी में आपको या ये कॉल लेना पड़ेगा या ये वाला कॉल लेना पड़ेगा, तभी क्लाइंट आपके पास रहेगा। आप क्लाइंट को बीच में रखेंगे ना, क्लाइंट विल नॉट सर्वाइव विथ यू, एंड इवन यू विल हेल्ड अप इन ए पोजीशन व्हाट कॉल नीड टू बी टेकन। कोई भी एक कॉल लीजिए, कॉल टेक विच इज गोइंग एज पर लॉजिकल एंड लीगल प्रोविजन, सो दिस इज द अलाउडेबल वन। Coming to the 4th case study, maybe I will do 10 minutes question answers also. मैं 10 minutes question answer किस लिए करूंगा मालूम है? जो पूछना है बिंदास पूछिए, जिधर से पूछना है बिंदास पूछिए, एंड आई एम कमिटिंग यू, आपका आंसर देके जाऊंगा, आपका 100% आंसर देके जाऊंगा, जिससे आपको आंसर मिल जाए। 4th case study, interesting one, and this is maybe on fake invoice and fake credit also. Before fake, एक बार जीएसटी ऑडिट वाला ले ले, जीएसटी ऑडिट। हाउ मेनी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हियर? हाउ मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट? ओ गुड वन। सो लॉयर लॉबी जीएसटी ऑडिट नहीं करती, इधर झगड़ा नहीं करेंगे अपन, हैं? इधर थोड़ा सा हमारे दर्द को समझिए। अभी वो जितने लॉयर फ्रेंड है वो क्या करते थे, मेरे से साइन करवाते थे, और अब क्या बोलते हैं मालूम है? अच्छा हुआ यार, झंझट गया, झंझट गया। दैट इज ऑन ए लाइटर नोट, बट लेट मी टेल यू, झंझट गया नहीं, झंझट आया, झंझट आया, बिलीव मी, झंझट आया।
जो जीएसटी ऑडिट करता था चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट के लॉयर लॉबी को क्यों नहीं दिया गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कंपनी सेक्रेटरी को क्यों नहीं दिया गया? आई हैव सीन इन जीएसटी ऑडिट एटलीस्ट हम 80-90% चीजों को रिकंसाइल करते थे, 80-90%, 10-20% लेफ्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑन क्लासिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन ऑन रेट, इंटरप्रिटेशन ऑन क्रेडिट, बट अदरवाइज 80-90% हम मिला देते थे. राइट? डू यू ऑल एग्री? हम मिला देते थे. डिपार्टमेंट आने से पहले उसकी तैयारी कर देते थे. सेकंड डिपार्टमेंट वाला तो आके सबसे पहले क्या बोलेगा ना, बिमल तू चोर है. क्लासिफिकेशन का इश्यू है, बट बिमल तू सर विश्वास मानिए, दिस इज देयर माइंडसेट, दैट इज द वे दे डू इट, बट वी गेट देम प्रिपेयर्ड. नाउ दिस जीएसटी ऑडिट गोइंग अवे, there are 2-3 regions which is coming out in a market. First region coming out in a market कि बिमल जी हमेशा एक्सटेंशन मांगते रहते हैं ड्यू डेट का. बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा एक्सटेंशन मांगते रहते हैं. कोई दूसरा बंदा आया मेरे से बोला नहीं नहीं इस बार ऑडिट इसलिए ले लिया ना कि वो ट्विटर पे आप लोगों ने एफएम को बहुत बुरा भला कहा है. ट्विटर पे आपने एफएम को बहुत बुरा भला कहा है. डेमोक्रेटिक कंट्री है सर, 100 डेज से एजिटेशन चल रहा है उधर फार्मर का. मैं ड्यू डेट भी नहीं मांग सकता. बट लेट मी टेल यू, इट इज नॉट ड्यू डेट एक्सटेंशन फॉर मी. योर फॉर्म जीएसटीआर 9 and 9C was not ready. The day last date 17-18 से आप सोचना स्टार्ट कीजिए. एंड सेकेंड, जीएसटी ऑडिट आपने सिस्टम के अंदर डाला था, मैंने पहले लॉ के अंदर आपने डाला था 35 सबसेक्शन 5, रेड बिट सेक्शन 44 सबसेक्शन 2. एम आई राइट? अभी भी क्या ऑडिट नहीं चाहिए? सर अब प्रोविजन क्या बोलता है मालूम है? अब प्रोविजन बोलता है बीइंग ए टैक्स पेयर यू विल फाइल योर एनुअल रिटर्न, नो ऑडिट, with self-certified, word use, self-certified. Value of supplies declared in GST return should match with the audited annual financial statement. अब मुझे इंडिया में एक क्लाइंट बता दीजिए जो अपना वैल्यू ऑफ सप्लाई जीएसटी रिटर्न और बुक्स के हिसाब से मैच करके दे दे. They have to come back to me only. Not only, I'm not saying only chartered accountant, it is for all the professional to look at. They have to take our excellency and capability. अभी सर एक recently आप चीज देखिए, 1920 का क्या लास्ट डेट था सर? 20th February 2021 got extended to 31st March. Last date तक भी are saying सर थोड़ा सुन लो, बढ़ा दो, डेट बढ़ा दो. I have uploaded one video on YouTube. Those who are with me on my YouTube channel, they must have seen that video which was uploaded on 28th of February of 7 minutes. I made 2 points in that video only. First point I made, आप अपनी जान को जोखिम में क्यों डालते हो? उधर में ऑफिस में आप 12-1 बजे तक बैठे हुए हो. And then you are worried about कि रिटर्न नहीं जा रहा. जाएगा नहीं ना. लास्ट डेट में पोर्टल कैसे काम करता है? दिमागी काम नहीं करता. We are human being, we are not robot. We are human being. Why due date extension? तो मैंने उस वीडियो में एक और बात डाली, मैंने आप ड्यू डेट एक्सटेंड मत कीजिए. You give waiver of late fees. How many of you have seen that video by the way? मैंने यही बोला था ना, और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत अप्रिशिएट किया था. जान है तो जहान है. आप हमारे लिए भी सोचिए. And I'm again telling you, we should not demand extension of due date of annual return. It has got implication for extension of time period for issuance of so-called notice and order under section 73 non-fraud case, under section 74 for the fraud cases. आपको मालूम है ना? बोला प्रोविजन मालूम है आप लोगों को कि नहीं मालूम है? मालूम है ना? पीछे से सर नहीं, पीछे से नहीं हाथ उठा रहे आप लोग. मालूम है सर? पीछे से सही या सुन लो? ओके यार, हाँ बस नहीं करने का. इतना आप बोलेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा. डू वी हैव कॉलर माइक? कॉलर माइक? नो नो, ये तो हाथ में लेने का. ओके, सो दिस वाज अ पॉइंट आई एम मेकिंग. सो जीएसटी ऑडिट टू माय माइंड should have continued. For the region, we are also getting money deposited.
कुछ तो कलेक्शन होता है। अभी एक डेटा आया कि जीएसटी ऑडिट जाने से डिपार्टमेंट को 30,000 करोड़ का सेविंग होने वाला है। मैंने बोला बॉस ये डेटा मुझे बता दो कैसे सेविंग होने वाला है। वो तो करते ही काम तब है जब उनको कुछ दिखता है मिलने वाला है, but now when they do the work, they don't do the work. But these are the data is giving negative image. We as a fraternity must be united together. आप कभी अलग मत होइए chartered accountant and lawyers. Please believe me. As a professional, we should be joining hands together. And this is a good forum where we are joining hands together and raising our concern. This audit was meant only for the proactive, preventive maintenance preparation for the taxpayer. That is my way to look at. If someone is having a different message, they can always say, Bimal ji, usme fees lagta hai, ye problem, wo problem. Sir, if 10,000 rupees saving you 1 lakh rupees is more than sufficient. And next year you again correct yourself. ऐसा नहीं है कि एक साल गलती हो तो next year होगा. Then you correct yourself. And that has got cost saving, interest saving, penalty saving. My only message to you, that they should have taken a conscious call. Coming to the important point, which is on fake invoice and fake credit, which is very interesting and very important for all of us. मैं कुछ ऑडियंस से पूछना चाहता हूं, and you have to tell me what you think and what is your way forward. A client came up to me, and very interesting. I will tell you, this client got converted from 30,000 to 10 lakh rupees as a professional fees. Not a laughable stuff. He came only for 30,000 rupees discussion, converted into 10 lakh rupees assignment. Listen very carefully, and I will connect the topic as well. He is calling me and telling me, sir, video upload नहीं होगा ना? हाँ, क्योंकि कई चीज ऐसा बिंदास बोल रहा हूँ इधर में, उधर में वो बिंदास मुझे पकड़ लें, बोले आजा बिंदास सुना देते हैं तेरे को सारा काम बिंदास हो जाएगा फिर। सर कई बार क्या होता है, कई चीज VCM में हम लोग नहीं बोल पाते। VCM में you can't say because you are being recorded. But in physical seminar we can always say those things so openly. So physical seminar has got its own interest. मैं आपको देख भी पा रहा हूँ कि आपका मोबाइल चल रहा है नहीं चल रहा। VCM में मुझे क्या मालूम आप क्या कर रहे हो? मैं तो इधर से चिल्ला के बोल रहा हूँ, उधर से आप अपना वीडियो बंद करके दबा के इमोजीज भेजे जा रहे हो नहीं मालूम पड़ता, बट ठीक है। बट दिस इज व्हाट द वी हैव सीन, VCM हैज गॉट इट्स ओन लाइफ। नाउ वे फॉरवर्ड हमारा वही टेक्निकली अडेप्टेड, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स दैट। आई एम नॉट सेइंग दैट दैट इज नॉट, दैट इज व्हाट द वे फॉरवर्ड लाइफ। ए क्लाइंट कॉलिंग मी फ्रॉम लेट्स से अहमदाबाद, saying that बिमल जी मेरे पास इनवॉइस है, ईबे बिल भी जनरेट किया, बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब आपने पेमेंट भी बैंक के थ्रू रूट किया है, क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? सर मिलेगा नहीं मिलेगा? कौन बोला नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ओ मिला, ईबे बिल है यार। और यार ई-वे बिल का मतलब ये होता है कि मैंने गुड्स रिसीव। Am I right? So when eBay bill got generated, then I'm substantiating transportation has taken place, right? And goods has been received. Yes, मिला है, goods मिला है, अब मिलेगा। हाँ सर, 2A में दिख रहा है, 2A में भी दिख रहा है, 2A में भी दिख रहा है। देखिए अब सी कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है, राइट? 2A में भी दिख रहा है। नेक्स्ट, और सप्लायर को भी टैक्स भरना चाहिए। सप्लायर ने 3B भी भरा है। अब बोलिए, चलिए सर, आप लोग को समझ में, आप लोग को अब समझ, अब मैंने अपने साथ ले लिया। अब आप लोगों को, अब आपके दुखती उस पर हाथ रख दिया है। कई लोगों की प्रैक्टिस अभी इसी चीज पे है। मैंने बोला बॉस क्रेडिट तो मिलेगा आपको, उधर से वो बोलता है बिमल जी आपको समझ में नहीं आ रहा। मतलब मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा भाई? इनवॉइस है, ई-वे बिल जनरेट है, बैंक से पेमेंट हुआ है, 2A में दिख रहा है, आपने रिसीव किया है, आपको क्रेडिट मिलेगा। बोले बिमल जी आप समझ नहीं रहे हैं। मैंने बोला बॉस
फोन पे जितना बोल सकता था बोल दिया, क्रेडिट मिलेगा। बोले बिमल जी नहीं नहीं नहीं, आपसे ना मिल के बात करना है, अक्रॉस द टेबल। मैं मिल लो, पर मिलने के चार्जेस, मुझे देखने के चार्जेस 30,000 रुपीज है मेरे ऑफिस में। एंड बिलीव मी, दिस इज द फैक्ट आई एम टेलिंग यू। इधर में मैं फ्री में आया बिकॉज ऑफ लव एंड अफेक्शन मैम। इधर में आया बिकॉज ऑफ लव एंड अफेक्शन। इधर में मेरा फ्रेटर्निटी, मेरा दोस्त, मेरे साथी बैठे हो, तभी तो बोलता हूं मोबाइल मत चलाइए, गर्ट से बोलता हूं। इधर आया आपके लिए हूं, आप मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो क्या रिस्पेक्ट पास ऑन किया? एम आई राइट? तो मैं आपसे ये कहा 30,000 रुपीज। बोला बिमल जी सिर्फ इतना ही पूछना है, छोटा सा क्वेश्चन है आपसे। मैंने बोला ऑफिस में नो छोटा नो बड़ा, 30,000 रुपीज इज माई चार्जेस, डिस्कशन चार्जेस, इफ यू वांट टू कम कम। अहमदाबाद से भाई साहब दिल्ली आते हैं, टाइम लिया, बैठे मेरे साथ, सेम स्टाइल, बिमल जी क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? आई सेड क्रेडिट मिलेगा, लेकिन व्हेन आई से क्रेडिट मिलेगा, फिजिकली ही वाज सिटिंग बिफोर मी, आई कुड रीड हिज फेस। मैंने बोला इसमें कुछ लोचा है, इसमें कुछ, ये पूछने के लिए और 30,000 देने के लिए भगवान जी को समझ में आ जाता है। जिस दिन आप गोला लेके जाते थे, जिस दिन 1.25 किलो का लड्डू का डब्बा लेके जाते हो, समझ जाते हैं कि आज कोई दूसरा रिक्विजिशन है। क्योंकि वो कल तक वो गोला 10 रुपए वाला लेके आता था, आज 1.25 किलो का लड्डू का डब्बा लेके आया है, कोई ना कोई तो लोचा। मैंने पूछा बॉस, सबसे पहले ना आपको मेरे सामने ब्लैंक सच बोलना पड़ेगा, सच के सिवा कुछ नहीं। मैं आपका डॉक्टर हूं, जब आप सच बोलोगे तब मैं आपको दवाई दूंगा। दवाई भी क्या है, दूंगा पूरी, लेकिन आपको सच बोलना पड़ेगा। अब वो ही स्टार्टेड साउंडिंग, सर परसों ना मेरे यहां रेड हुई, डिपार्टमेंट वाले आए थे, दे केम इन द इवनिंग ओनली 5 o'clock, वही टाइम है उनका आने का। अगर किसी ने सर्च सीजर हैंडल किया हो, शाम को आएंगे, रात के खाने तक थोड़ा सॉफ्ट रहेंगे, और खाना खाने के बाद पता नहीं दे बिकम एग्रेसिव। जमा कराओ, अभी जमा कराओ, नहीं जमा कराया अंदर। अगर किसी ने हैंडल किया हो तो, किसी ने अगर हैंडल किया है तो, उनका टाइमिंग ही है। और इधर में तो वो घर पे रह जाते हैं 3-3 दिन तक, बिना अथॉरिटी के, फैमिली के साथ 3-3 दिन रह रहे हैं। हु हैज ऑथराइज्ड देम? And that Gujarat High Court coming back and telling them, boss, what nonsense going on in the name of search and seizure? तुमको चेक करने का चेक करो, ये क्या मतलब है? घर पे बहू बेटी सब कुछ है, and you are sitting in the घर पे बैठे हुए हो, और you are not allowing them to call and say anything. What is the hypocrisy going on? गुजरात में, not बाहर, मोदी जी के घर में। मोदी जी को नहीं मालूम? सर एक मैसेज दिया मैंने आपको लाइटर नोट पे, माइंडसेट नीड टू बी चेंज। नहीं होगा ना, यहां लोग 1 मिनट लगाते हैं पलटने में, 1 minute. They have to really wake up because they are not doing which is making GST good and simple tax. है fake invoice, है fake credit, आप ही की वजह से है। I will tell you इनकी वजह से है। I will prove today, आप लोग मानेंगे इनकी वजह से है। Let me go further. मैंने पूछा आपको सच बताना पड़ेगा मेरे को। बोला सर रात को आए, बोले आपने 9 करोड़ का क्रेडिट लिया है, 9 करोड़ सच्ची वाला फिगर बोला मैंने। इधर मैंने 90 नहीं किया गुजरात की वजह से, 9 करोड़ का क्रेडिट लिया है। उनका एलिगेशन यह है कि मैंने पूरा रॉन्ग क्रेडिट, फेक क्रेडिट लिया है। तो मैंने पूछा कितने का, कुछ फेक क्रेडिट लिया है क्या? बोला हाँ सर लिया है। कितने का लिया? बोले 3 करोड़ का लिया, 3 करोड़ का फेक क्रेडिट लिया। मतलब आप क्या करने का? बोले सर वो बहुत डरा के गए, एंड कल मेरा बीपी बढ़ गया, देखिए मैं इस नर्सिंग होम, वो इंस्पेक्शन सर्च सीजर का मामला ही ऐसा होता है। वैसे फीस अगला साल आएगा, ये वाला केस होगा तो फीस अभी आ जाएगा, पहले आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है क्लाइंट इधर में पैसा ही तब देते हैं, एंड दिस इज द आयरनी। आप बोलते जीएसटी ऑडिट नहीं होना चाहिए, आप बोलते वो जीएसटी कंसल्टेंट कौन है जिसके टाइम पे फेक इनवॉइस, फेक क्रेडिट हुआ, उसने सर्टिफाई भी किया दवा के? सर वो 10,000 की ऑडिट बंद करनी पड़ेगी हमें।
वी हैव टू रियली प्ले की रोल. 1 लाख रुपए लूंगा फीस का. ऑडिट GSTR 9C, बॉस 5 लाख रुपया लूंगा. अब हम लोग कंपटीशन में कहां फंस जाते हैं, वो 25,000 मांग रहे तो मैं 20,000, ये 20,000 तो ये 10,000, और नीचे वाला बोलता है अगले साल से. सर नहीं चलेगा. वी हैव टू वेक अप, वी हैव टू प्राइस आवरसेल्फ. नाउ 3 करोड़ रुपए का फेक क्रेडिट, ही इज सेइंग दैट. पहले फेक इनवॉइस है क्या, पहले इसको समझ ले, टू आंसर ऑल ऑफ यू. What happened in the supply chain? There were 3 party, A, B and C. लाइटर नोट पे बनाता हूँ. ठीक है, सर माइक ले लेता हूँ. C is my client who has come up to me in Delhi. So C को अभी नहीं पकड़ते. उसने मुझे समझाया. क्या समझाया सर? A ने इनवॉइस रेज किया, इनवॉइस फाड़े हैं, GSTR 1 फाइल किया, but 3B फाइल नहीं किया. It got auto-populated in B GSTR 2A. जहां समझ में नहीं आएगा आप मुझे रोक देंगे. इनके 2A में आ गया. Now he is also cutting the invoice and sending to C and using this credit for discharging the liability through GSTR 3B. Am I clear? अब मेरा C मेरा क्लाइंट है, तो C के 2A में भी आ रहा है, C के पास टैक्सेस पेड भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है. C के एंड पे नो प्रॉब्लम. प्लीज टेल मी एज पर लॉ प्रोविजन वाइज whether credit can be denied at the hands of C. Please say yes or no. Yes. How many of you say? सर eBay बिल है. अगर मुझे लिटिगेशन करने का है, मैं बोलूंगा गुड्स मूव हुआ है और इनने रिसीव किया है, लिटिगेशन कर लूंगा. इसीलिए मैंने उस पॉइंट पे आपको आउटराइटली मना कर दिया. उस पॉइंट पे आप डिबेट ना करिए, लिटिगेशन में जीत जाऊंगा मैं. बट सी को क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, दैट इज द क्वेश्चन आई पोस्टेड. टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू से क्रेडिट मिलेगा. से यस. एंड हाउ मेनी ऑफ यू से नो. एज पर मी क्रेडिट नहीं मिलेगा. फर्स्ट करेक्शन. कैसे नहीं मिलेगा, लेट मी प्रूव. बोलना है ऐसे नहीं, प्रूफ करने का है. सी के पास जो क्रेडिट आया उसका अल्टीमेट टैक्स का पेमेंट हुआ ही नहीं. सी के पास जो क्रेडिट आया उसका अल्टीमेट टैक्स का पेमेंट हुआ ही नहीं, क्योंकि इनने सिर्फ इनवॉइस फाड़ा था, इनके क्रेडिट में चला गया, इसी क्रेडिट को यूज करके आगे बढ़ाया, टैक्स का पेमेंट नहीं हुआ. प्लीज आपको समझ में आ गई बात मेरी? समझ में आ गई ना? अब वो सी के पास कैसे पहुंच गए? नेक्स्ट क्वेश्चन. उनको सपना आया क्या कि सी फेक इनवॉइस लेता है? सर सपना किसी को नहीं आया. हम सब चालाक भी हैं और बुद्धू भी हैं. So many chartered accountants and lawyers got engaged and created fictitious firm to become mastermind, kingpin. बाबा 1 साल में करोड़पति बनने का है. उसने सोचा सब कर लेते हैं, सब हो जाएगा. What happened? He happened to be a chartered accountant. Sorry, he happened to be a chartered accountant. जब GST इंट्रोड्यूस हुआ ना, तब GSTR 1, 2A, 2, 1A, 3B. ये मैं बोल तो गया, पर कितनों को समझ में आया मुझे नहीं मालूम. मैं अब बताता हूं, उसको समझा देता हूं क्या था. सप्लायर 1 फाइल करेगा. सर यू आस्क मी इफ एनी कुछ डाउट हो सर पूछने का मेरे से. ये 1 फाइल करेंगे, 1 2A में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा बायर के लिए. अगर इनने कोई गलती कर दी, ऐड मॉडिफाई डिलीट, ऐड मॉडिफाई डिलीट. रिसिपिएंट कैन डू ऐड मॉडिफाई डिलीट while filing GSTR 2 for availing ITC. हो सकता है ना कि इनसे मान लिया, इनने इनवॉइस ही नहीं चढ़ाया, तो आप क्रेडिट ले लीजिए ऐड करके. जब आप ऐड करेंगे और 2 फाइल करेंगे तो 1A ऑटो पॉपुलेट होकर इनके पास आ जाएगा, और यहां इनको दिखेगा
कि इनने क्रेडिट ले ली है इन्हीं की इनवॉइस पे और इनने आउटवर्ड टैक्स, तो इनको आइदर एक्सेप्ट करना पड़ेगा या रिजेक्ट करना पड़ेगा, राइट? देन जीएसटीआर 3 जाएगा, ऐसा सिस्टम था। पर इंप्लीमेंट अगर ये होता ना, 99% प्रॉब्लम कुड हैव बीन सॉल्व्ड। 99% प्रॉब्लम कुड हैव बीन। अब चोर लोग कैसे जगे, मशरूम काइंड ऑफ पर्सन कैसे जगे? इनने सोचा 2A तो है ही नहीं, 2A तो तब था ही नहीं। 2A ओनली केम सम टाइम इन 2019। 2009, उसके पहले सर्च सीजन नहीं होता था, ये अभी 1920 से स्टार्ट हुआ। अब क्या हुआ, 2A जब आया तो सबसे पहले इनका जीएसटी नंबर खगाला गया, देखा ये तो 1 ही फाइल कर रहा है, इसका तो 2A है ही नहीं। पहले तो इसको पकड़ा, बोले अरे यार तू तो एकदम इनवॉइस ही काट रहा है, तेरे पास तो क्रेडिट है ही नहीं है और पे भी नहीं कर रहा तू। पूछा भाई तू बता क्या बताएगा, क्या फेक इनवॉइस है, काटा ही है। इनके पास गए क्योंकि फिर इनवॉइस इनको फाड़ी है, इनने वही क्रेडिट यूज किया फॉर कटिंग द इनवॉइस जो सी के पास चली गई। तो यानी ये तीनों के तीनों सप्लाई चेन में पकड़े गए। दिस इज हाउ दे आर कैच होल्डिंग ऑल द गाइज इन सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में लोग पकड़े कैसे जा रहे हैं, पहला पार्ट। अब मैं इसका पहले कंक्लूजन करके दूसरे पॉइंट पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। नाउ सी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, सो ही इज टेलिंग मी बिमल जी क्या करूं, मैं रिवर्सल मारना पड़ेगा, नो चॉइस। बट सर मैं डिपार्टमेंट नहीं जाना चाहता, दे आर सो डेंजरस, पूरा 9 करोड़ पे ड्रामा कर रहे हैं। आप सर मिल लीजिए ना उनसे एक बार अहमदाबाद आके। मैं ठीक है मैं अहमदाबाद आता हूं, लेकिन फिर मेरे चार्जेज फ्री में काम नहीं करने का। यू हैव टू प्राइस योर सर्विसेज। जब तक आप अपने आप को प्राइस नहीं करेंगे, क्लाइंट को आपकी वैल्यू नहीं मालूम पड़ेगी। सर समय उसको दीजिए जो समय की वैल्यू करता हो, समय उसको मत दीजिए जिसके पास आपकी वैल्यू नहीं है। यानी जब मोबाइल आप देखने लगते हैं तब मुझे दिक्कत होने लगती है। क्यों होने लगती है मालूम है? कल रात को बैठा, इधर आया, पूरा दिन आज इधर लगाऊंगा और आप मोबाइल देख रहे हैं, दिक्कत होगी ना। मैंने कनेक्ट कराया आपको, हर चीज की वर्थ का मीनिंग है। तो आई सेड देन व्हाट क्लाइंट इज नाउ सेइंग, सर आप बचा लेंगे ना मेरे को? मैंने पूरा बचा लूंगा, बिंदास बचा लूंगा, चिंता मत कर, बट मेरे चार्जेज है। बोला सर चार्जेस जो आप मांगे, आप कोई फीस का तय नहीं है कि अहमदाबाद वाला मुझसे इतना मांगता है। विमल जी आपका नाम बहुत सुना हुआ है, यूट्यूब पे आपको देखा है, पहली बार मिल रहा हूं, मन खुश हो गया है सर, आप जितना बोलेंगे उतना। बोले 50% रख के जाओ। बोले सर अभी ले लो आप 50%, और तब वो कैश भी लेके चलता है, तब वो कैश भी लेके चलता है। एंड यू विल ऑल बिलीव दीज आर ऑल रियलिटी एज ऑन डेट, दीज आर ऑल रियलिटी एज ऑन डेट। आई केम अप एंड मीट विद द ऑफिसर। ऑफिसर से जैसे मैं मिला, मैंने बोला सर मैं इसके केस में आया हुआ हूँ, सी के केस में आया हूँ। सी का नाम बोलते ही स्टार्टेड साउंडिंग बैक टू मी, टेलिंग मी आप चोर को रिप्रेजेंट करते हैं। बिमल जी यू हैव गॉट योर नेम एंड फेम, व्हाट द हेल यू आर डूइंग? एंड ही इज अ चोर, ही हैज टेकन फेक क्रेडिट एंड एवरीथिंग एंड टेलिंग मी इन द मीटिंग कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया। और ये तो तब तक सही थे, इनने अपनी बात तो कह दी कि मैंने कुछ नहीं किया, बट भीतर से ही नोच कि मैं चोर हूं। सॉरी अभी लाइटर नोट पे, अभी मैंने भी कहा बिमल चोर है, तो कोई मन में लगाने का नहीं है। तो व्हेन दिस थिंग्स गॉट कम्युनिकेटेड, इन लोगों ने किया क्या था मालूम है? 18% का माल लेते थे, 9% इसको दे दिया, 9%। समझ में आ रहा है आपको सर? और ये भैया अपलोड नहीं होगा, ये मैं कह के जा रहा हूं, ये वाला वीडियो अपलोड नहीं होगा। जो नहीं आए वो फेलियर, मिस कर गए। अब इनने सारी बात तो मुझे कह दिया, मैंने भी ऑफिसर को सुन लिया। तो एक टैक्टिस बताता हूं, कभी भी डिपार्टमेंट जाइए ना, दैट यू विल नॉट फाइंड इन बुक कि कैसे हैंडल करने का है। दैट इज योर एक्सीलेंसी इन कैपेबिलिटी। आई गिव एन ए थॉट, 5 मिनट तक मैं नहीं बोलूंगा, आई विल लिसन लिसन लिसन। पहले बोल ले, तेरे पेट में जितना भरा है बोल ले। जैसे घर में जाते हैं ना, मैडम के भरा हुआ होता है,
तू बोल ले, तेरे को जितना बोलना है। 5 मिनट बाद सफाई देते हैं। यार तू समझती नहीं है यार। यू नो दैट ना। एंड 5 मिनट बाद शी से इट बैक, वो बोलेगी तो तुमने पहले बोला क्यों नहीं, तूने बोलने कब दिया। एंड देन उसके बाद एक कप चाय अदरक वाली अच्छी सी आती है ना। सर सच में कुछ टेक्टिक्स होती हैं जो मैन मैनेजमेंट से आती है, दैट यू कैन नॉट लर्न फ्रॉम द बुक, दैट कम फ्रॉम द मैन मैनेजमेंट। 5 मिनट में जब बोल लिया, मैंने उससे बोला सर एक चीज बोलूं, मैं चोर को रिप्रेजेंट करने आया हूं, आई एम एग्रीएबल, मारिए उसको, मैं भी मारूंगा उसके, दोनों मिलके मारेंगे, पर कुछ बातें मुझे आपके सामने रखनी है, आप थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए, फिर देन वी कैन डिसाइड व्हाट टू बी डन। देन ही गॉट नॉर्मलाइज्ड कि मैं भी उसको मारने की बात कर रहा हूं। पूछा क्या? बोले सर आपने कहा उसने पूरी क्रेडिट ले ली है, उसका केस पूरा क्रेडिट का नहीं है। बोले आपको कैसे मालूम? मैं सर आपको मालूम है फेक का है पूरा, आप ही को प्रूव करना पड़ेगा। कैन यू प्रूव इट कि टोटल फेक क्रेडिट ली है उसने? देन ही गॉट मम। दे ऑलवेज पुट एलिगेशन, वी हैव टू डिफेंड लुकिंग एट द फैक्ट ऑफ द केस। सो उसको समझ में आ गया कि बिमल जी अब मुझे, तो बिमल जी फिर कितने का फेक क्रेडिट है? मैं सर आप तो मुझसे ही पूछ रहे हो, आप तो मुझसे ही पूछ रहे हो, जबकि यू सेड कि इसके पास फेक क्रेडिट है और पूरा क्रेडिट फेक है। बोले नहीं नहीं बिमल जी ऐसा नहीं है, बट ठीक है ये बताएगा ना। मैंने इसीलिए तो मैं आया हूं आपके पास बताने के लिए। सर आप कल बोल के आ गए इसको कि आप इसको अरेस्ट कर लेंगे, बेचारे का तो बीपी हाई हो गया एंड ही हैजंट कम, इसलिए वो नहीं आया। आपने समन दे रखा है, सर्च के बाद इमीडिएट नेक्स्ट डे आपको आने के लिए बोलते हैं डिपार्टमेंट आओ, इसलिए वो नहीं आया आपके पास। अदरवाइज ही वॉज स्टैंडिंग, नीचे बैठा के गया था, इधर बोला चाय पियो तुम इधर में, मैं आता हूं ऊपर से मिलके। मैंने कहा सर इसके पास 3 करोड़ का फेक इनवॉइस है और आप इसको अरेस्ट नहीं कर सकते। पूछा क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज 132 सबसेक्शन 1 हैविंग 4 offenses, those are called non-bailable offenses, जहां आपको बेल भी, वो 4 ऑफेंसेस क्या है आप भी ध्यान से सुन लीजिए, कल आपके पास कभी कोई क्लाइंट का केस फंसे तो आप भी तैयारी करेंगे। पहला, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट इनवॉइस यानी कैश सेल। सेकंड, इशुएंस ऑफ इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। देखिए एक बार याद करने का तरीका भी होता है, हम लोग सब लर्नेड है, जब हमने चार्टर्ड पास किया, लॉ पास किया तो याद करते थे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन आपको याद आ गया, एक में सप्लाई हो रहा है इनवॉइस नहीं है, एक में इनवॉइस और सप्लाई नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ गया। और उसी फेक इनवॉइस पे क्रेडिट ले लिया, 3rd ऑफेंस, उसी फेक इनवॉइस पे आपने क्रेडिट ले लिया, 3rd ऑफेंस। एंड 4th, जीएसटी कलेक्टेड but not deposited beyond a period of 3 months. These are 4 offense, and if amount crosses 5 crore, then this is called non-bailable offense, cognizable offense. वहां अरेस्ट हो सकता है। मैंने कहा सर 3 करोड़ का केस आप अरेस्ट तो कर ही नहीं सकते। तो अब उसको समझ में आ गया कि उसकी जितनी निगोशिएशन पावर थी got squeezed. Then he's sounding 3 करोड़ रिवर्स करवाओ आप, बोलो से 3 करोड़ रिवर्स करेगा। मैंने कहा सर बिल्कुल रिवर्स करेगा, बट आई एम लुकिंग फॉर इंस्टॉलमेंट पेमेंट। इज इट पॉसिबल इन जीएसटी फॉर इंस्टॉलमेंट पेमेंट? पॉसिबल? यू ऑल एग्री? सर इंस्टॉलमेंट मांगता है वो, और दूसरा आपसे एक हेल्प चाहता है सर। पूछा क्या? मैंने कहा सर इस अकाउंट पे जो आपने बी और ए से कलेक्ट कर लिया है उतना आप कम कीजिए, 3 में से कम कीजिए। अगर आप उससे 3 रिवर्स करवाएंगे और इनसे ले लेंगे, इज इट नॉट डबल टैक्सेशन? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी यू हैव टू गिव नेट ऑफ टैक्सेस ऑलरेडी कलेक्टेड फ्रॉम ए और बी। आई विल रिवर्स ओनली द नेट क्रेडिट अमाउंट। एम आई क्लियर टू ऑल? इट इज ऑल पार्ट ऑफ that knowledge which we are talking about.
देन ही गॉट कन्विंस कि ठीक है, नाउ वी आर, विमल जी करवा देंगे ना रिवर्स? तभी तो आया हूँ, दिल्ली से अहमदाबाद चल के तभी आया हूँ। और ठीक है विमल जी करते हैं। 30,000 rupees my fees got converted into 10 lakh rupees. 10 lakh rupees I'm getting for saving of what? 10 times of the cost of C. पहले मैंने नेट करवाया, इंस्टॉलमेंट करवाया, एरेस्ट से बचाया। He will be willing to pay me not only 10 lakh, 20 lakh rupees. विमल जी 20 लाख रुपया लेके जाओ, मैं बचा। आप कहते हो जीएसटी ऑडिट नहीं चाहिए। जीएसटी ऑडिट किसको नहीं चाहिए मालूम है? जिसको 10,000 रुपीज खटता है। जीएसटी ऑडिट का इंपॉर्टेंस किसको समझ में नहीं आ रहा मालूम है? जो सिर्फ 10,000 की फीस लेता है। लीजिए ना 5 लाख की फीस, चार्ज कीजिए 5 लाख की फीस, गिव द क्वालिटी टू हिम एंड टेल हिम मैं आपको इतनी सेविंग करके दूंगा। दैट इज द करेज। हम लोगों ने नाम बिगाड़ रखा है हर चीज का। सो दिस चार्टर्ड अकाउंटेंट जो अभी आज पकड़ाई आ रहा है ना, या लॉयर पकड़ाई आ रहा है, उनको ये लगा था 2A नहीं आएगा, तो अब आपको एक बजट के साथ कनेक्ट कर दूंगा, एक बजट के प्रोविजन के साथ। He has raised the invoice, A has raised the invoice to B, B has paid the taxes to A is the defaulter one, A ने टैक्स जमा नहीं कराया, तो B को क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ या ना? 2A में दिख रहा है, 3 भी नहीं भरा। देखिए A ने 1 भरा, मिलेगा। ओह, सर ने बोलेगा 16(2) के हिसाब से मिलेगा। मैडम यू अंडरस्टूड 16(2)? कौन पे नहीं करेगा सर? अरे A को पे करना पड़ेगा तभी मिलेगा। बेचारे B का क्या दोष है? मिलेगा, राइट? आप ठीक, परफेक्ट। अब ये ऑडियंस मेरी ऑडियंस हो गई है। एक मैजिक शो होता है, राइट? मैजिक शो में आधा घंटा लगता है सबको बांधने में, और इसके बाद सब बन जाते हैं। अब ये पूरा ऑडियंस मेरे साथ बंध गया है। एज पर लॉ नहीं मिलेगा। अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 there are 4 conditions. What are those 4 conditions? B must have tax invoice copy, recipient and buyer. Am I clear? कहीं डाउट होने का, बोलने का बीच में। B must have received goods or services. Condition number 2. Condition number 3, section 16 subsection 2 clause C. Condition saying supplier must have paid taxes. रिसिपिएंट ने तो बायर को दिया, पर बायर ने जमा, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। दैट इज व्हाट द प्रोविजन। एंड लास्ट, रेगुलरली फाइलिंग द रिटर्न, सप्लायर और रिसिपिएंट। प्रोविजन क्या बोलता है बोलिए? कुछ लोग बोलते हैं रिसिपिएंट, कुछ लोग साइलेंट हैं क्योंकि उनको अभी प्रॉब्लम फंसा ही नहीं है। जब आएगा तब देखेंगे। 4 साल हो गया जीएसटी इंट्रोड्यूस को। सर ऑन ए लाइटर नोट, अगर आप लॉ पढ़ेंगे तभी लॉ की बारीकियां समझ पाएंगे, तभी आपकी फीस 30,000 से 10 लाख पे जाएगी, वरना 30,000 से 5,000 रुपए पे होगी। Recipient filing regular return, not the supplier. Law provision is like this. अब प्रॉब्लम यह है कि A ने टैक्स जमा, नोटिसेस भी आ रहे होंगे, है मैं राइट? आज उसको सॉल्व करते हैं, और यूनियन बजट का प्रोविजन भी समझाऊंगा मैं आपको। अब मान लीजिए इनने एडवोकेट चंद्रकांत जी मेरे क्लाइंट हैं, मेरे पास आए, बोले विमल जी ये तो ए सप्लायर है, उसने टैक्स जमा नहीं किया, मेरे से कलेक्ट भी कर लिया और जमा नहीं किया, मेरा क्रेडिट क्यों नहीं मिलेगा मुझे? वी ऑल आर डिमांडिंग, राइट? आई एम ऑफ द ओपिनियन दिस क्रेडिट शुड बी अवेलेबल टू द रिसिपिएंट। आई विल क्रिएट 2 पीरियड बिफोर यू, 2 पीरियड बनाऊंगा मैं आपके सामने, एंड लीगली आई विल आर्ग्यू why credit should be available. Listen very carefully.
till the time 2A came into the picture. 2A, which was sometime in 2019. So for 17, 18, 18, 19, this recipient buyer does not know. उसे तो मालूम ही नहीं था कि ये टैक्स जमा नहीं करा रहा. Am I right? And there's a legal maxim in the Supreme Court. You cannot ask a person to do something which is impossible. And there is a subtle jurisprudence. जो lawyers community है, they will agree with me. Chartered accountant अभी थोड़ा सा, but they are into that parameter. You cannot compel me to do something which is, how can I say? I was not knowing even. मेरा 2A आया ही 2019 में, मुझे क्या मालूम है टैक्स जमा नहीं करा रहा. Argument number 1. Argument number 2. Pre-GST, the Supreme Court judgment in the case of Central Excise, KK Industries Limited. Central Excise, same issue, that Central Excise charged by the supplier, credit available to the buyer, and supplier has not deposited the taxes, whether credit available or not. Supreme Court said for the fault of supplier, you can't deny credit in the hands of recipient. You can't deny. Even VAT regime, number of High Court judgment, Delhi VAT, Arise India judgment, same argument, same judgment. You can't deny credit to the recipient for the fault of supplier. SLP got filed in Supreme Court, got dismissed, nothing was discussed on merit, but got dismissed. एक बॉम्बे हाई कोर्ट का नेगेटिव जजमेंट है बस. In that VAT regime, for supplier's fault, recipient credit can be denied. This is what the jurisprudence is going on. But let me tell you and ask you, सर जब तक 2A नहीं आया इसका क्या फॉल्ट था? B का रिसिपिएंट का क्या फॉल्ट था? उसे मालूम ही नहीं था कि ये टैक्स जमा. आप मुझे कंपेल कर सकते हैं. यस सर 2A के बाद ही मुझे मालूम पड़ा कि 3B का टैक्स पेमेंट दिख रहा है या नहीं दिख रहा. सर वो आप इंडिविजुअली जीएसटी नंबर डालेंगे सर, फिर तो आप ये डिपार्टमेंट का आर्गुमेंट होगा. ये डिपार्टमेंट का आर्गुमेंट होगा. मेरे जस्ट ए मिनट, मेरे 10,000 वेंडर हैं. डू यू एक्सपेक्ट मी टू सिट डाउन एंड सी जीएसटी इनवाइस 3B भरा या नहीं भरा? एक एक करके चलेंगे. हम सब मिलके एक ही कंसेंसस बनाएंगे, एक ही डिसीजन लेंगे. जैसा कि उनने अपनी बात रखी, मैंने अपनी बात उनके सामने रखी. यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मी कि बिजनेस के साथ मैं ये ड्रामा करता रहूं. आपने कहा था ना 2A आएगा, सिस्टम से आएगा ना. आप 2019 में लेके आ रहे हैं, उसमें भी शुरू में यह नहीं मालूम पड़ता था कि टैक्सेस पे किया या सर. किधर में फॉल्ट इस बेचारे आदमी का? किधर में फॉल्ट इसका? I'm just coming back. I'm only saying that prior to 2A, we have strong arm of the humble opinion and strong view, credit is available to me. But after 2A saying that taxes paid or not paid by supplier, आप आर्ग्यू. फिर डिपार्टमेंट, फिर कोर्ट भी आपसे बोलेगा बिमल जी 2A में दिख रहा था ना, आपने क्यों उसको नहीं पूछा? आप बोलेंगे नहीं सर सप्लायर को पकड़ना चाहिए था. बोले लॉ का प्रोविजन यही है, जुवेनाइल को हम नहीं डाल सकते. अभी सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ एमनेस्टी स्कीम के लिए एक्सटेंशन, बॉम्बे हाई कोर्ट में है, दैट एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट. दे से दीज आर ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज, वी कैन नॉट इंटरवीन. अगर लॉ में लिखा है सप्लायर ने जमा नहीं किया तो आपको क्रेडिट, बट यू कैन ऑलवेज जस्टिफाई. सर मुझे कहां मालूम था किसने जमा नहीं किया? आप मुझे मैकेनिज्म तो दोगे ना. Am I right in saying so? So I'm of the opinion prior to 2A, till the time clarity emerges, I'm of the view and opinion credit मिलेगा. Only post 2A
And that too, you know that this supplier is not depositing. So time has come, know your supplier. Time has come, know your, like we follow, know your customer in KYC, banking transaction. Am I right? अब हम लोग ICI में भी लेके आए ना आपका signatures, UDI. Why we are all doing all this thing? Just to endorse it is authentic and correct one. अभी बजट में क्या चेंज आया मालूम है आप सब? अभी मैं आपके सामने एक आर्गुमेंट करने वाला हूं, लीगल आर्गुमेंट, एंड एज इफ यू आर द हाई कोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, एंड यू ऑल विल एग्री, बिमल जी क्या आर्गुमेंट आपने बिल्ड किया. प्रोविजन इज सेइंग नाउ अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, under section 16 subsection 2 there is subclause AA going to be introduced. What is subclause AA, you know? अब 4 कंडीशन के साथ एक और कंडीशन ऐड, एंड दैट इज प्रोस्पेक्टिवली, देयर इज नथिंग लाइक रिट्रोस्पेक्टिव. क्या ऐड करने बोल रहे हैं मालूम है? आपके सप्लायर ने GSTR1 भरा हो और रिसिपिएंट को कम्युनिकेट कर दिया हो. सप्लायर ने 1 भरा हो और B को कम्युनिकेट कर दिया हो, इतना ही प्रोविजन है. बट इस प्रोविजन को सुनने के बाद ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर सामने वाले ने 1 भरा तो इसके 2A में दिखेगा, दिखेगा ना. 1 भरेगा तो लायबिलिटी भी दिखेगी, तो A को जाके पकड़ लेंगे. इनका कहना, इनके माइंडसेट में ऐसा ही है कुछ. अब मैं आपको बताता हूं इस प्रोविजन के साथ व्हाट इज कमिंग आउट. 2-3 प्रोविजन मैं आपको बताता हूं, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. हैव यू हर्ड ऑफ रूल 36 सब रूल 4? व्हाट इज दैट रूल 36 सब रूल 4? सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मालूम है तो. नो, इट इज डिफरेंट. आई एम टेलिंग सर, कोई दिक्कत नहीं करने का. मेरा दोस्त है, मैं बुला के लाया था, तू उधर में ऐसे ही पूछना. मैं बुला के लाया था कि मैजिशियन का काम ही होता है. मैजिशियन के पास ना जो बीच बीच में जो ऑडियंस में जो बंदे होते हैं वो उसी के बंदे होते हैं. मेरे दोस्त बन गए आप, राइट? नहीं, इट इज, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ. इफ यू हैव बीन टू मैजिशियन शो, उधर में उनका ड्रामा ही होता है, बीच में से जो बंदा उठता है ना वो उन्हीं का बंदा होता है. सो डोंट एज्यूम कि मैजिशियन वाला, इट इज ओनली ट्रिक. बट मैं इधर ट्रिक नहीं कर सकता, लॉ प्रोविजन है, पकड़ लेंगे आप लोग मुझे. लिसन, रूल 36 सब रूल 4 says there will be capping of credit, which was initially 20% from 9th of October 2019 for pertaining to such invoice and debit note which is not furnished by my supplier in a GSTR1, hence not coming in 2A. 20% reduced to 10% from 1st January 2020. It reduced to 5% from 1st January 2021. अब ये है क्या, हिंदी में समझाता हूं तभी समझ में आएगा. लॉ इतना सीधा बनाते हैं ना, जैसे कि सीधे समझ में नहीं आता, उल्टा ही समझ में आता है. मेरे बुक्स में 15 लाख की क्रेडिट है, 15 लाख रुपीज क्रेडिट. बट मेरे 2A में 10 लाख रुपया आ रहा है, 10 लाख रुपीज, यानी 5 लाख का क्रेडिट नहीं आ रहा. तो रूल 36 सब रूल 4 क्या बोलता है? बिमल, 5 लाख का जो क्रेडिट नहीं आ रहा ना, तुमको पूरा नहीं दूंगा. तुमको 20% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट विच इज कमिंग इन 2A, विच इज 10 लाख रुपीज. स्टोरी स्टार्ट हुई थी 20% से, 10%, 5%, अब 5% मिलेगा. तो 5 लाख की जगह अब कितना क्रेडिट मिलेगा? लाउडर. 5 लाख की जगह अब कितना मिलेगा? 50,000 रुपीज. एम आई राइट? डू यू ऑल एग्री? अब मैं बोलने वाला हूं, हमने रिट फाइल कर दी थी कोर्ट में. हमने कहा था सर मुझे तो सिर्फ 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. मेरे पास इनवॉइस होना चाहिए, मैंने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव किए हुए हो, मेरे सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट 3 भी भर दिया हो, उसका 2A से कोई लेना देना नहीं था. अगर इसने 3 भी भर दिया और 1 नहीं भरा तो 2A में नहीं आएगा, राइट?
टैक्स पे करने का मतलब है वो 3B है, और रिसिपिएंट रेगुलरली रिटर्न भर रहा हो, एम आई राइट? मैंने कहा रूल 36 सब रूल 4 अल्ट्रा वायर्स, आई सेड दैट अल्ट्रा वायर्स, एम आई राइट? अब मेरा बात प्रूव हो गया। अब इन्हें प्रोविजन कहा, प्रोविजन ने कहा कि ये 1 भरे तो मैं ये बोलूंगा सर अब ये प्रोविजन आया है 1, अब ये 2A में दिखना चाहिए। यानी जो आपने पहले रूल 36 सब रूल 4 निकाला था, दैट वाज हैविंग नो वैलिडिटी। सर आपको मेरी बात समझ में आई? Am I clear to all? So sir, this was the next case study on fake invoice, fake credit and section 16 subsection 2 subclause AA। अब मैं थोड़ा चाहूंगा आप लोगों के ऑडियंस में, जैसे आप लोग तो जीएसटी सब इतना करते हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं। एक क्वेश्चन मुझे ना एक लिस्ट भेजी गई थी, मुझसे बोला गया था बिमल जी इन सारे क्वेश्चंस को ले लीजिएगा, ये थोड़े से क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स चाहिए हमको। एक लैंड के ऊपर यहां रियल एस्टेट का भी बहुत इश्यू है, land, development of land, joint development, but that issue is specific to certain consultant, those who are looking after real estate. One I was asked, and which was supposed to be club and membership, one retrospective amendment, and that would be my second last till the time permits. So I'm almost, मैं टाइम क्रॉस कर चुका हूँ, 5-10 मिनट ले लूँ विद ड्यू परमिशन, चलेगा? 5-10 मिनट, पेट नहीं बोलना ना? हाँ, सो नाइस, यही तो मांगता, मेरा प्राइस ही यही है कि लव एंड अफेक्शन मैम, एंड आई विल टेक सेल्फी विथ यू एंड विल शो टू माई वाइफ। सी आज एक और अहमदाबाद गया था ना, उसको हमेशा कुछ ना कुछ लगा रहता है, बोले देख अहमदाबाद, अब मैं अहमदाबाद अब हर महीने जाया करूँगा। Listen carefully now. देखिए एक चीज बताऊं आपको, लाइफ में ना इंटरेस्ट डालिए। इंटरेस्ट किस चीज का मालूम है? सीखने का, करने का। Yes on. Last case study, last one. There is another retrospective amendment proposed in Union Budget 2021. तो पहले तो मैं अपने सारे ऑडियंस से पूछूं, ऑडियंस यहाँ पे है। I have taken the issues which is hitting most to all of us together. Am I right? Am I right? Maybe next time when you will invite me on real estate, I will deliver on real estate 3 hours dedicated. And then we can discuss the queries of those members. Those who wanted dedicated session on real estate. बट मुझे लगता है ऑडियंस में जब मैं जाता हूं तो मुझे समझ में आ जाता है कि ऑडियंस को क्या मांगता। यही डिफरेंस है मोदी जी और राहुल बाबा के अंदर। राहुल बाबा एक साइड से बोले जा रहे हैं, उधर किसी को समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोले जा रहे हैं, कई बार तो उनको ही नहीं मालूम बोल क्या गया। पर आप देखेंगे मोदी जी का एक गुड स्टाइल, ही कैरीज बुलेट पॉइंट फॉर टॉकिंग ऑन द पॉइंट assigned to him on that day. I learned a lot presentation skill from Modi ji. Whatever might be, he is one of the leader which I have seen in my life. Political leader with so much of dedication, commitment. हाँ ठीक है, there are lot many things which we can also criticize, constructively we can criticize, but lot of things we have to learn as a professional. This guy comes up on a stage and mesmerizes a whole audience with a pointer, and pointer इधर उधर नहीं करता. He makes crisp note of those pointers and deliver to the audience for their digest. कुछ तो सीखने के लिए है हमारे पास, है, definitely है. My young fellow, those who are sitting here, they have lot to learn from this kind of vibration. Presentation with the kind of topic, with the pointers made, always makes a sense. अभी मैंने fake invoice, fake credit का मैंने एक डेमो आपको दिया ना, real moot court session. मेरा प्रेजेंटेशन देने का था, बट मूड कोर्ट में कन्वर्ट क्यों किया मालूम है? आपको यह बताने के लिए कि फेक क्रेडिट है क्या यार, क्या ड्रामा चल रहा है, और उसी को कनेक्ट किया यूनियन बजट से, उसी को कनेक्ट किया क्रेडिट मिलेगा या सप्लाई नॉन पेमेंट. सम टाइम वी हैव टू बी लास्ट
case study, 5-10 minutes, and then we'll break for lunch. लंच वैसे अच्छा बना हुआ है, राइट? अच्छा बना हुआ है, बोल दिया. सब लोग हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, कोविड इज देयर. माय फर्स्ट सेमिनार, लेट मी टेल यू, आफ्टर COVID-19 March 2020, my first physical seminar, and I've come in your seminar only. मुझे जब बोला गया कि गुरुजी आ रहे हैं दिल्ली से, सर आपको भी आना, प्रवीण भाई ने फोन किया मेरे को, प्रवीण भाई आ गए क्या? 12:30 बजे पे आने वाले थे, नहीं आए. देखिए पुरुषोत्तम भाई टोपीबाज, प्रवीण भाई मुझे बोले 12:30 पे पहुंच जाएंगे, अभी तक नहीं पहुंचे. बट नेवरदलेस दे टोल्ड मी गुरुजी आ रहे हैं. मैंने गुरुजी दिल्ली से अहमदाबाद फिजिकल? बोले सर आपको आना पड़ेगा, फिजिकल आना पड़ेगा. मैंने बोले कितने लोग होंगे वहां पे? बोले सर अभी कोरोना टाइम है, 250-300 तो होंगे. तो मैंने बोला चल ठीक है, काम का. मन ने भी भीतर से बोला बहुत दिन हो गए यार, थोड़ा बाहर घूम के आऊं. बहुत दिन हो गए, थोड़ा घूम के आऊं बाहर. इट्स माई फर्स्ट फिजिकल. मे भी आप लोग फोटो वोटो भेज दीजिएगा, फेसबुक पे डालूंगा, बोलूंगा यार फिजिकल सेमिनार अहमदाबाद में करके आया. वहां पे ऑडियंस बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी तरह उन्होंने सुना. लास्ट केस स्टडी. Any club or association providing services to its members, whether chargeable to service tax or GST now? This was the moot question. Honorable Supreme Court, Calcutta Club, deciding on a principle of mutuality, doctrine of mutuality. They say they are not separate person. And no service tax should have been charged. It was pertaining to incorporated club or association. Question was debated what happened for unincorporated, and question continued to be debated. जब registered है उसमें अलग नहीं माना, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा तो जीएसटी क्यों लगेगा? Am I right? Maharashtra Appellate Authority, Advanced Ruling Authority in Rotary Club said no GST leviable. They relied on Calcutta Club judgment. West Bengal, Mamata Didi, TMC, Appellate Authority, Advanced Ruling, they have said GST leviable. Two contradictory GST advanced ruling coming from Appellate Advanced Ruling Authority. And this dispute was persisting whether GST leviable or not leviable. One of the retrospective amendment which is being proposed in Union Budget 2021 is any transaction or activities, the word used, transaction or activities, of supply of goods or services by a person other than individual to its members or constituents for consideration, cash consideration, in-kind consideration, and valuable consideration. And by explanation, they have said they are considered to be separate person. कितना क्लब है और उनके मेंबर्स है, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो. इधर गुजरात में भी आपके बहुत सारे क्लब होंगे. And that too retrospectively from July 1, 2017. My only humble submission. Okay, आप GST लगाना चाहते हैं लगाइए, आपका मन है, आप कुछ भी कीजिए, आप सर्वे सर्वा है. But can you levy with retrospective date? Levy of tax with a retrospective date. मैंने लिया ही नहीं होगा GST किसी से. आप क्या चाहते हैं? अब मैं GST खोज के लाऊं? बिमल कुमार दिल्ली से आए थे, पता भी देके नहीं गए हैं, उनका GST मैं भरूंगा. See, you could have made prospectively first. And second, when you want to done away this subtle legal jurisprudence, at least some kind of negotiation, some kind of discussion should have been taken place with the trade chambers and association. कि भाई अभी से उस क्लब की बात नहीं चल रही जिधर में मॉकटेल एंड कॉकटेल चलता है. Any club, any association, maybe for the social welfare. What benefit you are deriving out of? Sometime I'm paying money. I gone to this, let's say आप लोग इधर आया, मैं अक्षरधाम टेम्पल में गया, and I paid donation of 10 crore rupees. 10 crore rupees. Whether GST leviable? Asking you. बताइए लगेगा क्या? आपको डर क्यों लग रहा है?
हाँ, ये ठीक कहा इन्हें, नहीं लगना चाहिए। जिनने ये कहा नहीं लगना चाहिए, ही इज द राइट पर्सन, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि जीएसटी में लग भी सकता है क्या। वो उसको डर, उसको लग रहा है कि भैया बिमल जी लगा मत देना, लगना नहीं चाहिए। सर यही जीएसटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, किसी भी ट्रांजैक्शन को डिस्कस कर लो लगता है कि लगेगा, और हम बोलते हैं कि लगना नहीं चाहिए। सर नहीं लगना चाहिए। व्हाट बेनिफिट आई एम डिराइविंग आउट ऑफ इट? बाबा के मंदिर में गया, 10 करोड़ डोनेट किया, किसी को नहीं मालूम, ना आता ना पता। अगर मैं उनसे बोलता इधर में बिमल जैन का नाम लिख दो कि बिमल जैन आए थे अपनी एनिवर्सरी पे, ये 10 करोड़ रुपया इधर दे के गए, तो बिमल जैन इज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो लगेगा क्या? फिर लगेगा। आई एम ड्राइविंग द बेनिफिट। For club and association, what kind of activity I am giving the donation? One part, I am giving subscription, that may be monthly, that may be yearly, that may be paternal, that may be honorary, that may be, but this is mean for overall objective of club activities. We all are. अगर आपको लाइफ मेंबरशिप लेने का है तो 5 करोड़ सबको देने का, सेम सेम। ये अलग नहीं होगा कि आपके लिए अलग, इनके लिए अलग। And what life membership अकेला enjoy करेगा? It's a collective enjoyment, and these monies are being taken for disbursement of expenditure for the common cause. There is nothing individually given and taken. Still this dispute persists. अब उस पर जीएसटी ले लेंगे? How you can identify? लाइफ मेंबरशिप 5 करोड़ दे दिया, लेकिन एक भी बार किसी पार्टी में नहीं आए। होता ना कई बार, आपने दे दिया पर नहीं आए, तो कोई मसाला नहीं खाया है इधर में, तो भी आप इन पे जीएसटी लगाएंगे? आई एम जस्ट गिविंग फूड फॉर थॉट, एंड दे आर जस्ट एक्सटेंडिंग। तो ठीक है, कल जो ऑफिसर्स क्लब है, ऑफिसर्स एसोसिएशन है, दे शुड ऑल्सो बी रेडी फॉर दैट एंड शुड नॉट क्लेम एनी एग्जेम्पशन। बहुत ज्यादा दारू वो भी पीते हैं, उधर पे उनकी भी मॉकटेल पार्टी चलती है, तो वहां पे भी आप लेना। बट ओनली हम्बल सबमिशन, इफ एट ऑल यू वांट टू लेवी टैक्स, kindly do not do with a retrospective date. ये retrospective उनका ट्रिक है, उनका ड्रामा है, so you can focus to abolish retrospective. Sir, I am, and we have submitted our representation. And let me summarize my presentation. See, I know a lot of you are connected on my YouTube channel, my Facebook, my Twitter. If at all you are not getting connected, kindly join. No political ambition. It is for making GST good and simple tax. And you will get a lot of good videos on GST topic. And that will help. सबका साथ, बीजेपी का नहीं, हमारा विकास, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, अब इतनी दूर से आप लोग कई कई जगह से आए होंगे, हमने एक कनेक्टिविटी आज एक दूसरे के साथ जोड़ी। कईयों ने आज पहली बार सुना होगा, कईयों ने बहुत यूट्यूब पे सुना हुआ है, पहली बार लाइव नहीं सुना, पहली बार लाइव सुन रहे हैं। तो हमने एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो देन वी शुड कैरी ऑन द रिलेशनशिप। कैरी ऑन ऑफ व्हाट? डूइंग द बेस्ट इन आवर लाइफ एंड कैरियर, डूइंग द बेस्ट इन आवर लाइफ एंड कैरियर। थर्ड एंड फॉरमोस्ट, थैंकिंग टू माय ऑर्गेनाइजर्स। उन्होंने इतना पेन लिया कि बिमल जी को ही बुलाने का है। अब जिसने भी इस बात को बोला होगा बिमल जी को बुलाने का है, तो बिमल जी को तो उन्होंने एडवांटेज दिया है। आई होप आपको मजा आया, आपको अच्छा लगा होगा मेरा प्रेजेंटेशन आज का। So I'm thankful. Thank you. Let us have a standing ovation for Bimal sir. No, it's not like that. No, thank you very much. And at last, I would like to say, God bless all of us. Take care of yourself. COVID is still on. We have to be careful about it. So, जहाँ भी जाएं, थोड़ा अपना ध्यान रखें. After all, we are responsible for our family as well. So, even I have come all the way from Delhi to this place. I would be reluctant, believe me, I would be reluctant not to go everywhere, but definitely take care of yourself. And with GST, get connected. कई बार आप भेजिए अपना, आपका जो मन आए भेजिए क्वेरी। टाइम मिलेगा तो रिप्लाई भी करता हूँ, कई बार ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं करता, और कई बार टाइम नहीं मिलता तो नहीं कर पाता। नहीं कर पाता तो बुरा नहीं मानने का, ये मानने का
बिमल ऑक्युपाइड होंगे। कई बार है ना वो 1.25 किलो का लड्डू का प्रसाद भी, वो एक लास्ट बोल के मैं खत्म करूंगा। एक बंदा हनुमान जी के मंदिर में जाता था और रोज 1.25 किलो लड्डू का प्रसाद लेके, हे प्रभु मेरी शादी कराओ, हे प्रभु मेरी शादी कराओ। हनुमान जी 30 दिन बाद पक गए, बोले यार पहले मेरी तो हो जान दे फिर मैं तेरी करवाऊं। तो कई बार क्वेश्चन आप करते रहिए, क्या मालूम कभी ना कभी कुछ ना कुछ हम अच्छा करें। So wishing each one of you a great success in your career, in your endeavors. Take care of yourself. God bless all of us. Thank you very much once again. Thank you, sir. Thank you very much indeed for your very refreshing delivery on recent amendments and sectoral controversies at the GST. Your scholarly insights through case studies were made understood even to a layman, and you engaged every one of us in rapt attention. Thank you very much indeed for your enlightening session. Very quickly, we will like to felicitate the committee members for the hard work and the dedication behind this two-day tax conclave, and then we'll immediately break for lunch. Starting with CM, and I would request Bimal sir to kindly do the honors to felicitate the committee members, starting with CA Mukesh Parikh sir, followed by CA Japan Yagnik. I would request the committee members to be just rising there. Thank you so much. Followed by Advocate Rupang Shah, CS Japan Yagnik. So I'm being honored. Thank you very much. आप इन लोगों के लिए भी ताली इसलिए बजाइए, this is their hard effort for the physical safety. Followed by Advocate Rupang Shah. Followed by Advocate Vasant Patel. Advocate Vasant Patel. Advocate Amit Soni. And finally, Advocate Chandrakant Thakkar. And finally, Advocate Chandrakant Thakkar. Chandrakant Thakkar, sir, yeah. Thank you, Bimal sir. Thank you, everyone. Thank you, all the dignitaries. I request everyone to please pose for the group photograph. I would request the dignitaries on and off the dais to come.